बजाज यानी आरकेबी, और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ, और हम दोनों हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी। यस सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, आगे प्रदीप जी बोलेंगे। Abariyako, Jambo, to our viewers from East Africa and South Africa. माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है सर, जबरदस्त। We greeting people in Swahili as well, and we promise to do, Pradeep ji promises to do a show completely in Swahili. Swahili. Very, very shortly. A huge market in East Africa. Absolutely. So we'll get somebody from Dar es Salaam Yes. talking to you very, very shortly. Dar es Salaam, Zanzibar, Nairobi. All the exotic places Yes, yes. that one read in all the adventure novels that we were reading in schools. And Pradeep ji has lived in all these places. Yes, yes. I envy you, sir. I This intend is to go absolutely amazing. your end to Nairobi, Zanzibar, Dar es Salaam Wow. to find out the historical, the stone city, the trade between the Arabs and the India, Kerala. Wonderful. The trade route of Yes. of the Zamorin ships. Exactly, sir. Fantastic. Wow. Isn't that lovely? Absolutely lovely. तो प्रदीप जी, अब ये तो हो गया कि भाई राहुल जी जो है रायबरेली से खड़े होंगे, किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से खड़े होंगे। Exactly. तो मतलब वो जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, वो तो हुआ नहीं। मतलब एक तरीके से अच्छा ही है कि नहीं हुआ। But Rai Bareli, if he's contesting, it's not going to be so, it's going to have a cyclic effect. Much more around the constituency. It is going to affect at least 5-6 constituencies adjoining Rai Bareli. Because the aura of Rahul Gandhi and the entire Congress aggression where the campaign of Rahul Gandhi is concerned, where Rai Bareli is concerned, so this is going to have a cyclic effect. And this effect, if it really happens, and it hits the BJP, even for 4 to 5 seats where Rai Bareli and around is concerned, then we are looking at something that is, BJP will have to really work a strategy on how to stop this arrest. You mean something that, what happened in 2004, where suddenly out of the blue the Congress won 20 seats. Exactly. In Uttar Pradesh, and they themselves are shocked कि ये कैसे हो गया साहब? Exactly. 20 सीटें आ गई, मतलब. And the very fact that he's fighting from, now he really required guts, because why not? He has already established himself, उन्होंने established कर दिया था, और Kerala had accepted Rahul Gandhi. Kerala had accepted Rahul Gandhi, and he had a fantastic campaign where Kerala is concerned. We took on the Chief Minister, Pinarayi Vijayan. He took on and said, why is he not arrested? Is he in tandems with the BJP? तो उन्होंने ये चीज को दिखाने की कोशिश किया कि the CPIM is with the working in collusion with the BJP, and probably that has polarized a lot of Muslim votes and other votes for Rahul Gandhi and the Congress in Kerala. So he might achieve the same result as on 2019. Or maybe 20 out of 20. Yes. One never knows. बिल्कुल sir. तो it's a and उसके बाद immediately after the elections over, they decided that he should fight in Rai Bareli also. Now this is a confident. Last time he ran away. Now this time he's won the seat and he has campaigned well. You cannot say that he, आप जैसे मोदी जी कह रहे थे कि डरो मत भागो मत. But I don't think डरा हुआ है. This is a different Rahul Gandhi, which is not scared from Amethi. Just the flight from Amethi was a different story. But why not fighting? Why not along with Rai Bareli is adventure, is show of strength. और प्रदीप जी, ये भी है यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भी है यहाँ पे कि भाई वो कांग्रेस का ये कहना है कि वो सिर्फ अमेठी में उनको स्थगित नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि अगर वो अमेठी चले जाते तो स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, सो वो कुछ ना कुछ उनके खिलाफ आरोप करती, ये करती, तो उनको प्रत्यारोप करना पड़ता या कुछ भी करना पड़ता. सो ही मे हैव गॉट हिमसेल्फ स्ट्रैंडेड इन अमेठी for a long time. Right now in Rai Bareli, he does not have to do that much of work. Exactly. Anyway, I don't buy that. But in any event, because even in Rai Bareli, ऐसा तो नहीं है, because the entire BJP machinery will be attacking him in Rai Bareli as well. Yes, बिल्कुल. So
बट पीपल आर डिसअपॉइंटेड, लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं स्पेशली अमेठी के, वो डिसअपॉइंट हुए हैं। हाँ, हर एक कोई किशोरीलाल शर्मा जी को जानता है, किशोरीलाल शर्मा जी जो है वहाँ पे 1983 से काम कर रहे हैं, तो इंदिरा जी के वक्त से, इनफैक्ट जो पहला इलेक्शन था राजीव गांधी जी का, वो 82 के अंदर इन्होंने मैनेज किया था शायद, किशोरीलाल शर्मा जी ने, और तब से उसके बाद 83 में उन्होंने वहाँ पे अपना घर खरीदा और तभी से वहीं पर हैं, चप्पा चप्पा पहचानते हैं। मतलब जहाँ तक एक एक गांव जो है वहाँ का अमेठी का, पूरी अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें 3 या 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके अंदर कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किशोरीलाल शर्मा जी को ना जानता हो। But sir, as we always talk, the general elections is all about the top leaders. It is all about Narendra Modi versus Rahul Gandhi or Akhilesh Yadav. Local candidates, yes, they have their own thing, यार सबको जानते हैं वगैरह है, but the vote उसी पे पड़ने वाला है कि what's in जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, these are going to play big factors, and people are generally going to vote for Prime Minister Modi or Rahul Gandhi as an alternative. वन ऑफ द टू, Yes, yes. वन ऑफ द टू, किसी भी तरीके से। और लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस नाउ टू आवर फ्रेंड फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जॉइनिंग अस अगेन, चंदन गोस्वामी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। चंदन गोस्वामी साहब नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम, जय सिया राम। और जय कैसे हैं श्री सर? हर हर महादेव, बस। हर हर महादेव। हर महादेव। तो चंदन गोस्वामी साहब, अभी तक 2 फेज जो हैं इलेक्शन के, 2 चरण जो हैं, आपके मुताबिक वो आपके लिए कैसे गए? हमारे लिए बहुत ही अच्छे रहे, पॉजिटिव रहे। भारतीय जनता पार्टी को पूरी सकारात्मकता के साथ में लोगों ने चाह करके वोट दिया है। विपक्ष ने अनेक प्रकार की अफवाहें फैलाना, अनेक प्रकार के अपने अपने संसाधन तरीके से उन्होंने बहुत कुछ मतदाताओं को कंफ्यूज करने की कोशिश की। इसमें इन्होंने विदेशों की भी मदद ली है, सबसे बड़ी बात यह है। और जो ताकतें भारत को कमजोर करना चाहती है उनकी भी मदद ली है। यह एक बहुत ही चिंताजनक बात है कि विपक्ष के पास में मतदाताओं का, देशवासियों का समर्थन नहीं था, इसलिए उन्होंने बाहर की मदद ली है। बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है ये। और मतदाताओं ने बहुत अच्छे से वोट दिया है। थोड़ा वोट का परसेंटेज कहीं कहीं कम हुआ है। भीषण गर्मी है इस समय, लू के थपेड़े से चल रहा है पूरा भारतवर्ष। फिर भी हमने देखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, वह हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी और सभी बड़े नेताओं के इसमें पूरी तरह से लोगों का बहुत आकर्षण है, बहुत भीड़ जुट रही है और मतदाता स्वयं फुर्ती से वहां आ रहा है। और उनके जो आने वाले जो भारत है, जो स्वर्णिम भारत है, उसके पूरी तरह से वह वहां पर में प्लानिंग सुन रहे हैं। इस प्रकार से मतदाताओं का बहुत अच्छा हमें यहाँ पर में मिला है। लेकिन आपने अभी भी कहा कि विदेशियों की मदद ली है विपक्ष ने, यानी इंडिया अलायंस ने आपके मुताबिक, तो अगर ऐसा है तो वो एक्सपोज क्यों नहीं हुआ सर अभी तक? उसको तो एक्सपोज करके इनको जेल में डालिए, अगर ऐसा ये कर रहे हैं तो। ये तो घातक चीज है, मतलब ये देखिए सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। जी सर, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, विदेशियों के बयान आ रहे हैं, ट्विटर के थ्रू कर रहे हैं, ये अलग अलग माध्यमों से ये कर रहे हैं। और अभी क्या वो उसकी जहां पर भी कंप्लेंट करने की होती है चुनाव आयोग को, वहां पर भी बराबर किया जाता है उसे, और वह चुनाव आयोग का काम है जी। गोस्वामी साहब, ये हाथ बदलेगा हालात, नागपुर द फर्स्ट फेज में इलेक्शंस हुआ, क्या यह हाथ का कुछ प्रभाव हो गया? हाथ बदलेगा हालात, 7 पिलर्स ऑफ जस्टिस, राहुल गांधी 25 गारंटी लेकर, राहुल गांधी कांग्रेस मैनिफेस्टो, अनबीटेबल एवरी, तो क्या यह प्रभाव पड़ा है राहुल गांधी का? हाथ बदलेगा हालात कैसे हुआ नागपुर? और अलग देखिए, राहुल गांधी का पूरे देश में क्या यह सम्मान है, किस प्रकार उन्हें पुकारा जाता है, यह आपसे भी छुपा नहीं है, हमारे से भी छुपा नहीं है। अगर वो 25 प्रकार की गारंटी लेकर के जा रहे तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछले 70 सालों से उनके
कांग्रेस का जो सरकार थी उन्होंने वो किया नहीं, नीचे तक उसको पहुंचाया नहीं है, सब भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी गई है। क्योंकि उनके पिताजी ने ही बोला था कि 1 रुपया हम भेजते हैं 15 रुपया यहाँ पहुंचता है। राहुल गांधी ने पहले उसका लोगों को जवाब देना चाहिए कि हमने 70 सालों में किस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, किस प्रकार हमारे मंत्री और हमारे नेता किस प्रकार विदेशों में, देश विदेशों में पले बढ़े, और हमने अपना किस प्रकार विदेशी संस्थाओं को बढ़ावा दिया है, और किस प्रकार हमने खुद ने, हमारे परिवार ने किसी एक मीडिया पत्र पेपर के माध्यम से वो अन्य संसाधनों से भ्रष्टाचार किया है। यह कोई हाथ में बदलेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा नागपुर में और पूरे देश में। सर वो तो फोरगॉन कंक्लूजन है, उसके अंदर तो कोई डिबेट नहीं है वैसे अभी, जहाँ तक ये तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, 1.5 साल से तो हम ही कह रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बन रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी तीसरी बार थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ही विल इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस उसमें डिबेट इतनी है कि कितनी सीटें आएंगी, डिबेट इस बात की है और डिबेट इस बात की है कि इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। जैसे कांग्रेस की 53 सीटें आई, अभी सिर्फ 52 रह गई, 1 सीट शायद चली गई उनकी। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की 52 से 60, 70, 100 के करीब होंगी या 50 से भी नीचे आ जाएंगी? गोस्वामी साहब देखिए, एनडीए आघाड़ी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस एक मिनी बस की ही रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। ज्यादा से ज्यादा 40-44 सीटें आपके भी सब टीवी माध्यमों में दिया जा रहा है और सर्वे में भी इसी प्रकार का आया है 40-45 बस। कांग्रेस की कोई अभी क्रेडिबिलिटी नहीं है सर, मेन बात ये क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस खंड खंड हो चुकी है। अभी देखिए, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस, किसी जमाने में शरद पवार कांग्रेस में थे, ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, हरियाणा के कई घटक है जो कांग्रेस में थे, वो खंड खंड हो चुकी है कांग्रेस। राजस्थान में अब उनकी क्रेडिबिलिटी आपने देख ली और आपको पता भी पड़ रहा है कि वहां पर किस प्रकार कांग्रेस के लोगों को खदेड़ा जा रहा है वहां पर में वापस। सर वो सर वैसे चंदन गोस्वामी साहब, वैसे वीडियो तो बीजेपी के बारे में भी आ रहे हैं कि बीजेपी के गाजियाबाद के जो कैंडिडेट हैं उसके ऊपर पत्थर मारे गए, उसके बाद मुरादाबाद में जो आपके लोग थे उनको भगाया गया। सर उसके ऊपर तो ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान में असेंबली इलेक्शन में सिर्फ 1.6% का डिफरेंस रह गया था कांग्रेस और आपके बीच में। आपका वोट शेयर 1.6% ज्यादा है, भले आप सीटें ज्यादा जीते हों। तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर हमें कुछ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मेरा आपसे कुछ और कहना है, मेरा आपसे कुछ और ये कहना है सर कि आप जीत चुके हैं, लेट्स बी वेरी क्लियर। इसमें मैं ये मान करके नहीं चलता। लोग कहते हैं कि अभी पता नहीं क्या आएगा, कौन सी हवा आएगी। कौन सी हवा आएगी यार, क्या बात कर रही है? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हवा 1 साल पहले मालूम पड़ जाती है कहाँ पर आने वाली है। और श्री राम के सामने कौन सी हवा टिकेगी? मैं तो हर एक से ही पूछता हूँ, ठीक है साहब। भले मुझे हर एक को ये बोले ये खाकी चड्डी वाला ये वो है, और हर एक को फिर मैं रिमाइंड करता हूँ यार अब तो चड्डी से हम लोग पतलून पे आ गए, अब तो पैंट और पैंट खाकी पैंट हो गई ना, अब तो वो तो बोला करो। मेरा ये कहना है कि आपके मुताबिक इस चुनाव में अभी 5 चरण और बाकी हैं, लोगों के जहन में कौन से सबसे बड़े विषय हैं जिसके ऊपर वो मोदी जी को वोट देंगे, ये बताइए सर प्लीज। सबसे बढ़िया जिस प्रकार मोदी जी का उन्होंने विजन देखा है, और मोदी जी के अलावा मोदी जी के मंत्रिमंडल का जो विजन उन्होंने देखा है, विकास और सिर्फ विकास, और योजनाएं जो है वो धरातल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो थी, अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा मिलना चाहिए, वो अंतिम व्यक्ति को फायदा देने की पूरी कोशिश की गई। 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में बांटा दिया गया, ये कोई छोटी बात नहीं होती। कोविड के समय वैक्सीन जिस प्रकार सबको दी गई, छोटी बात नहीं होती। देश विदेश में दी गई, भारत के अलावा विदेशों में दी गई। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सभी को घर का योजना दी गई। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसका बखान अभी करेंगे तो बहुत 2 घंटे के करीब लग जाएगा। तो आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री की सरकार बनने के बाद में अनेक विकास के कार्य होंगे। जो मथुरा काशी तो आपने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो अभी बाकी है।
इसके अलावा सर क्यों नहीं बोलना चाहिए? उसके लिए तो हम लोग बैठे हैं सर, पिछले 30 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं बोलना चाहिए? नहीं, मेरी समझ में नहीं आया ये क्या मतलब हुआ? नहीं, अरे नहीं, भारत में नहीं बोलोगे नहीं, तो अभी कहाँ बोल- बोलोगे? पाकिस्तान में बोलोगे? ये क्या मतलब? नहीं, अभी कोर्ट ऑफ कंडम चल रहा है। कोर्ट ऑफ कंडक्ट में क्या है? आपका रामायण उत्सव अभी तक ये कुछ चुका नहीं। नहीं है। जो प्राण प्रतिष्ठान के दिन आप पूरे विश्व भर में जो रामायण उत्सव करने वाले हैं हर साल, जी, दैट्स अ बिल्कुल। ग्रेट अचीवमेंट। 500 साल के बाद जो हुआ है, इसको कोई बोल नहीं सकता। इसलिए आपका स्लोगन है जो आप बोलते हैं, आपका नहीं, ये पब्लिक का है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गोस्वामी साहब, उसमें कोई दो राय है ही वाह, नहीं, वाह, उसमें क्या है? बात। जी, तो आप ये ऐसे- बताइए सर, अभी देखिए उज्जैन का महाकालेश्वर कॉरिडोर जो है वो बन गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, अभी मथुरा का भी कॉरिडोर बन रहा है जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो वो तो होगी ना, फ्यूचर में बात हो गई, कुछ तो बन भी गए हैं। आप मुझे ये बताइए, जहाँ तक एक आपके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म लगता है, क्रिटिसिज्म आपके खिलाफ क्या आता है? एक आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम हमेशा करते हैं। फॉर एग्जांपल मोदी जी की जो अभी भाषण भी जो हैं, उन्होंने कह दिया कि साहब देखिए ओबीसी का जो आरक्षण था वो मुसलमानों को दे दिया, कर्नाटक की सरकार ने वगैरह वगैरह, ये सब बातें कही है ना। लेकिन आपकी भी सरकार ने उस आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। और उसके अलावा जिसने आरक्षण ये दिया था 5% मुसलमानों को कर्नाटक में, वो अभी आपके पार्टनर हैं एच डी देवेगौड़ा जी, और जिनके नवासे जो हैं, उन्होंने तो माशाल्लाह क्या बात है, क्या क्या रंगरलियां सजाई और हैं उन्होंने रेवंत तो। उनके पिताजी अरेस्ट भी हो गए, उनके देवेगौड़ा पिताजी के बड़ा लड़का जो है। तो उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? क्योंकि ये लोग तो भुनाएंगे उसको। गोस्वामी साहब, अब ऐसा है हिंदुस्तान में, ऐसा ये होना नहीं चाहिए, जी। जिसका हमें एक खेद है, लेकिन एजेंसियां और वो कानून अपना काम कर रहा है उस पर। हमें बड़े फोकस ये है कि रोजगार के और संसाधन हम जुटा रहे हैं, और दिया जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत के तहत जिस प्रकार से प्रगति की जा रही है, लोगों को खुद उस पे निर्भर हो रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिससे भारत और आगे बढ़ेगा, विश्व गुरु बनेगा भारत। और भारत चंदन विश्व जी, में मगर आप पे बेसिकली क्या आरोप है कि आप पे आरोप है कि मोदी साहब ने वेल्थ इनइक्वालिटी कर दी है। राहुल गांधी जी का कहना है 1% ऑफ द पीपल आर हैविंग 40% ऑफ वेल्थ, ये आप पे आरोप है। एंड राहुल गांधी वांट्स टू डू वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, अमीर से लेके गरीब, मगर मोदी जी उसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक्सरे मशीन आएगा, आपका स्त्रीधन लेके जाएंगे, आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे। तो इस प्राइम मिनिस्टर मोदी मिस रिप्रेजेंटिंग राहुल गांधी वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन? चंदन जी, अब राहुल गांधी के क्या बोलते हैं वो उन्हें खुद नहीं पता पड़ता। मैंने पहले ही बोला है, लोगों ने देखा है यहाँ पर में अभी युवा जो है वो युवा जागृत है। ये पहले वाला नहीं रहा भारत। और भारत एक नया भारत बन के उभर के आया है। अब जिस प्रकार से कांग्रेस ने 70 सालों में जातिवाद और अलग अलग प्रकार से उसके अंदर में बांट करके जिस प्रकार राजनीति की, झूठ बोल करके राजनीति की, अब झूठ नहीं चलेगा। अभी नया भारत है, सबको पता है कि राजीव गांधी क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, सबकी नीतियां सबको पता है। और रही बात, हमने कोई भी डिफरेंस नहीं किया, हमने ये कभी भी ये नहीं कहा कि ये जो योजनाओं का लाभ है इसमें मुसलमान को हम दे या नहीं दे, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। सभी उनको दिया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को। हमने कहा कि जो सबको मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिले, ऐसी बात नहीं मिले करके, लेकिन कुछ चीजों पर हम डिफरेंस है, और डिफरेंस हमेशा रहेगा हमारा। अब ये इनका काम है कंफ्यूज करना, कांग्रेस का काम है कंफ्यूज करना। पहली नहीं होते नौकरी लोग। पक्की, चंदन जी, पहली नौकरी पक्की, कांग्रेस का कैंपेन है। बोले मोदी जी ने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया है, मोदी जी ने इंडियन यूथ और जॉब मार्केट के बीच में एक बहुत बड़ा दरार, बैरियर खड़ा कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का आरोप है आप पर, यू क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यू क्रिएटेड अ बैरियर बिटवीन द इंडियन यूथ एंड द जॉब मार्केट। एक एग्जाम्पल देते हैं कि राहुल गांधी जी रेलवे स्टेशन गया था, वहां पर एक कुली मिला जो सिविल इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर। बोले कि ये हालत है कि सिविल इंजीनियर आज कुली का नौकरी कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, हाइट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। गोस्वामी जी, ये किसकी देन
ये अनएम्प्लॉयमेंट पहले ही कांग्रेस की देन है। रही बात, अगर यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होता भारत के अंदर में, तो भारत की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से 5वें 4थे नंबर पे आ रही है 11वें नंबर से, वह नहीं होती। यहाँ एम्प्लॉयमेंट के बहुत अवसर है, अनेकों अवसर है, लेकिन वो उसके खुद की करने की किस प्रकार से है व्यक्ति की, वो उसके ऊपर क्षमता के ऊपर में है। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर में थोड़ा बहुत है, वह मोदी जी आने वाले दिनों में उसके ऊपर में पूरा फोकस कर रहे हैं। लेकिन चंदन और रही गोस्वामी बात साहब, पहली जो नंबर मूल सवाल जो है, मूलतः सवाल प्रश्न जो उठाया है राहुल गांधी जी ने कि कोई क्या था, इंजीनियर था ना, कोई सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कूली का काम कर रहे वो हैं, उन्होंने सिविल इंजीनियर करी, वो अभी कुली का काम कर रहा है। रेलवे स्टेशन। तो आप मुझे बताइए, इसमें क्या सरकार की गलती है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो सिविल इंजीनियर को इसमें नौकरी कहाँ नहीं मिली सरकार कहीं? सर मैं आपसे कहाँ पूछ रहा सरकार की हूँ। गलती है बताइए। मैं तो सिविल इंजीनियर को कहीं नौकरी नहीं मिली, अभी वो कुली का काम कर रहा है, तो उसमें आपकी क्या गलती है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी गलती है क्या इसमें? हमारी गलती कैसे है? वह अगर कुली का काम करना चाहता है, उसकी इच्छा है अगर करने की, अब वो सिविल इंजीनियर में उसने कहाँ का एग्जाम दी, क्या दी, वो उसको पता। उसने एम्प्लॉयमेंट के तो कितने पूरा इंटरनेट पे पूरे सब ओपन है, सरकारी नौकरियां बोलो, कौशल्य विभाग का वहां पर में है। अब इंजीनियर ने उसने प्रयास करने चाहिए थे। और कई बार देखा मैंने, एक बार और आपको एक बात बता देता हूं मैं, कई आंदोलनों में कई बार और कई इनसे बात करते थे, उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही एक फिक्स लोग रहते हैं जो अनेक बार पकड़े गए हैं। मीडिया ने ही उसको एक्सपोज किया है, वही कार्यकर्ता यहाँ आंदोलन में रहता है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे जरा सरप्राइजिंग लगा, आपको नहीं लगा क्या? क्योंकि देखिए साहब, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा, जैसे प्रदीप जी ने कहा, बताया कि वो सिविल इंजीनियर है। तो सिविल इंजीनियर की डिमांड तो आज की तारीख में चरम सीमा पर है, क्योंकि हर जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, हर जगह रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रही हैं, अरे अंडर सी टनल बन रही है, मेट्रोस बन रही हैं, रेलवे लाइंस बन रही हैं। तो सिविल इंजीनियर का नाम तो अभी सबसे बड़ा है। और आज भी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था इंटरनेट पे, आज भी कोई 5,500 के करीब और वैकेंसीज निकली हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो ये कौन सा सिविल इंजीनियर है यार जिसको नौकरी नहीं मिली? मैंने वही तो बोला, इनके ही कार्यकर्ता रहते हैं, पहले से फिक्स रहते हैं ये लोग। वह सामने कर दिए जाते हैं कि हमको ऐसा बोला गया, कहानियां बनाते हैं, रोज नई नई कहानियां बनाते हैं ये लोग। अब इतने काम रोड्स के काम चल रहे हैं, 28 किलोमीटर पर डे, 35 किलोमीटर पर डे रोड बन रहा है यहाँ पर। कितने सिविल इंजीनियर यहाँ पे काम में लगे हुए। तो सिविल इंजीनियर्स की तो शॉर्टेज है अभी। वो कुली का काम कैसे कर रहा है? मैंने आपको बताया, यह सब विदेशी ताकतें और यहाँ के कांग्रेस का और कुछ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टियों की एक मिली जुली कार्यकर्ता रहते हैं, वही हर जगह दिखाई देते हैं। लेकिन ये मैनिफेस्टो जो है सर, वो आपने क्या है कि मोदी जी ने बोला कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखती है। मुझे वेरी फ्रैंकली मुस्लिम लीग की छाप कहीं नहीं दिखी, मुझे कम्युनिस्टों की छाप दिखी। जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, कार्ल मार्क्स ने जो लिखा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, उसकी छाप दिख रही है, मुस्लिम लीग की छाप नहीं दिख रही है मुझको। तो ये तो पुराना फलसफा है ना, तो क्या मतलब ये दोबारा रिवाइव कर रहे हैं उसको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, अभी काम करेगा क्या आज के युग में? ये पुराना वामपंथियों का जो फलसफा है कि किसी भी तरीके से दोबारा वेल्थ जो है, जैसे अंबानी, अडानी, रुइया, सिंघानिया, बिरला, टाटा, इन सबके पैसे वैसे सरकार ले लेगी और फिर उनको बांट देगी, मतलब यही हुआ ना इसका सर? और क्या हो, ये इन्होंने हर समय अलगाववादियों को, कम्युनिस्टों ने अलगाववादियों को हर समय सपोर्ट किया है, आपने देखा है। केवल उनका थोड़ा बहुत केरला के अंदर में और अपना बंगाल में है, तो ये पूरे देश में इसी प्रकार का राज करना चाहते हैं। और इस प्रकार का कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, वह सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा ही साबित है। लेकिन चंदन गोस्वामी साहब, आपसे एक सवाल है जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, वेरी फ्रैंकली इट इज डिस्टर्बिंग मी पर्सनली। सर, वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड द मैनर इन विच मिस्टर मोदी इज वर्कड, स्पेशली विद रिगार्ड टू आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 आप लोगों ने रिपील किया, एब्रोगेट किया, आर्टिकल 35 में भी रिपील करके एब्रोगेट कर दिया। तो सर, कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में बीजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं है, ये क्या है सर? एक आदमी तो होना चाहिए था ना, कोई तो कैंडिडेट होना चाहिए था लोकसभा में।
भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में आपने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया है सर कश्मीर घाटी में, ये इसके पीछे क्या है? तो इसके पीछे सोची समझी एक रणनीति होगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों की, एक सोची समझी रणनीति होंगी। अब वो तो हमारे वरिष्ठ ही बता पाएंगे किस प्रकार की उन्होंने पॉलिसी की है। तुष्टिकरण की बात करते रहते हैं चंदन गोस्वामी जी, तुष्टिकरण हाईलाइट करते हुए मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के वो स्टेटमेंट बार बार लोगों को समझाया कि हर मंच पर मनमोहन सिंह जी ने जो कहा कि द फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज इज विद द मुस्लिम्स। नाउ दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ तुष्टिकरण, ऑफ अपीसमेंट। तो डू यू थिंक दैट कांग्रेस आज भी वही छाप है, मुस्लिम लीग जो बार बार जैसा भी बोल रहे मुस्लिम लीग का छाप है, मनमोहन सिंह जी का स्पीच क्या वो हाईलाइट कर रहा है इन अ बिग वे तुष्टिकरण? हमेशा से तुष्टिकरण, कांग्रेस ने तुष्टिकरण किया ही है हमेशा, और झूठ बोलो और फूट डालो इस प्रकार राजनीति की है उन्होंने। तो ये तो पुराना ही फलसफा है उनका। और लोगों ने, मैंने पहले बोला कि इस समय युवा जागृत हो चुका है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और जो समझदार है वो सब समझते हैं, मतदाता बहुत समझते हैं। खास करके जब वोटिंग करने जाता है ना तो व्यक्ति को उसको बहुत ही बातें याद आती है और फिर उस प्रकार से वह वोट करता है। कांग्रेस इस प्रकार से कई फलसफे पहले भी दे चुकी है और हमने उसके एक्सपोज भी किया है। लेकिन सर चंदन गोस्वामी साहब, इस बार क्या हुआ है, पहले 2 चरण में आपको लग रहा होगा कि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। पहले 2 चरण में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर बाहर निकले नहीं है, ये कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट आई है। हो सकता है कि आपको तकलीफ हो, और इसलिए 3rd फेज में जो इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर आप ही को मालूम होगा सर कि जितने आपके बूथ इंचार्ज हैं उन सब लोगों को क्या हिदायत दी है, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आप जानते हैं। तो फर्स्ट 2 फेजेस में बीजेपी के सपोर्टर निकले नहीं है सर, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, बताएं। और तो 4 जून को पता पड़ेगा राजू। लेकिन जहां तक मैं नागपुर की बात कर लूं, नागपुर में इस प्रकार का खास करके फैलाया गया कि बीजेपी के सपोर्टर निकले नहीं है, लेकिन जब हमने उसका पूरा गणित निकाला तो जो सवेरे सवेरे सुबह जब वोटिंग हुई उसमें बीजेपी की बहुत अच्छी खासी वोटिंग हुई। मैं खुद भी ग्राउंड पे था, मैंने खुद मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता ने और अनेक कार्यकर्ताओं ने बहुत सारी मेहनत की। सुबह से 5 बजे उठ करके किया उन्होंने, 5 बजे उठे और वो सभी मतदाताओं को उन्होंने उस प्रकार से जो प्लानिंग की थी उस प्रकार से उनको वोट करवाया है। पन्ना प्रमुखों ने अपनी पूरी जवाबदारी निभाई है। तो फिर ये भी rumor फैलाया जा रहा है, गडकरी जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं सर, नितिन गडकरी जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तो आपको क्या लग रहा है सर इस बार कितने वोट से जीतेंगे सर? नहीं, लेट मी कंप्लीट थोड़ा सा। इसमें ऐसा हुआ है कि प्रशासन ने थोड़ा सा हमें जो लिस्ट दी थी और जब वो लिस्ट आई तो उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस था जी, कि अनेक जो गुजर चुके हैं उनके नाम उसमें मेंशन थे, और अनेक जो जैसे उदाहरण के लिए माता पिता का नाम नहीं था, बच्चों का नाम है। प्रशासन से बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है, हमने प्रशासन को बोला भी है, निवेदन भी दिया है। लेकिन रही बात जीतने की, तो हमने 5 लाख से अधिक वोटों के जीतने का नारा दिया था, हमने पूरा एक विश्वास जगाया था। लेकिन थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि लोगों के नाम नहीं थे वोटिंग लिस्ट में, और बीजेपी के जो मतदाता है वो बहुत परेशान थे इस बार कि हमारे को वोटिंग करने दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है लोग खुद निकले, और मुझे तो अनेक लोगों ने बार बार फोन किया कि मेरा नाम देखिए बताइए, मेरा नाम देखिए बताइए। तो कई लोगों के उसमें नाम नहीं थे। यह लोकतंत्र के लिए सही चीज नहीं है। गवर्नमेंट गोस्वामी जी, वो आप उसको आरोप कैसे किसी और पे लगा सकते हो? यू हैव टू मैनेज इट। यहाँ पर सरकार आपका है, सेंटर में सरकार आपका है। आई वांट टू आस्क यू, अमित शाह जी ने जो कहा बार बार, बिकॉज इंडिया अलायंस के घटक दल के अलग अलग मैनिफेस्टो में कोई कह रहा है कि आर्टिकल 370 हम लोग वापस लेके आएंगे, ट्रिपल तलाक जो हम लोग ने आपने अबॉलिश कर दिया उसको वापस लेके आएंगे, सीएए को हम लोग रद्द कर देंगे, एनआरसी को रद्द कर देंगे, यूएपीए को हम लोग रिफॉर्म करेंगे, डीन्यूक्लियराइजेशन करेंगे। अमित शाह जी ने कहा ये कुछ होने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। नाउ ये आपका बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन केस यू डोंट अचीव योर टारगेट्स। तो इसको कैसे आप सॉल्व, आई मीन हाउ यू गोइंग टू हैंडल दिस? आर्टिकल 370 कोई बोल रहा है कि वापस लेके आएंगे, हाउ डू यू सी दैट गोस्वामी जी?
ये जो इनका असली चेहरा तो सामने आ ही रहा है ना। और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी वो जो बोल रहे हैं वो सत्यता में बोल रहे हैं। उन्होंने लोगों के सामने देश के सामने वस्तु स्थिति रखी है। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि आर्टिकल 370 हटे, कभी नहीं चाहा ट्रिपल तलाक हटे उस पे आवे। ऐसा कांग्रेस ने अनेक, एनआरसी में भी कांग्रेस ने इसी प्रकार से विरोध किया हुआ है। वो गृह मंत्री की देश के सामने रख रहे हैं और हमारी जब सरकार आएंगी तब यह इस पे किसी प्रकार का कोई जी नहीं आएगा संकट। सर आर्टिकल संकट किसी प्रकार का नहीं 370 आएगा। आर्टिकल 370 तो वापस नहीं आता सर, वो तो इम्पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कही नागपुर के बारे में, उससे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चलते चलते, तो सर ये ऐसा क्यों हुआ? मतलब बीजेपी इज यूजुअली वेरी एफिशिएंट, और ज़्यादातर क्या होता है, मुझे खुद को मालूम है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वोटिंग के 4 या 5 दिन पहले हर एक के घर में फ़ोन चले जाता है या कोई मैसेज देता है कि भैया अपना वोटर्स लिस्ट में नाम ज़रा चेक कर लेना। इस बार क्या कहीं गलती हो गई, कुछ क्या हुआ इस बार, ऐसा क्यों हुआ? अभी लोग प्रशासन चेक कर रहा है, उसकी प्रशासन को बोला गया है तो प्रशासन चेक कर रहा है। अभी क्या चुनाव आयोग ये तो अभी बोला नहीं जा सकता, 4 तारीख के बाद सब चीजें सामने आएगी कि कहाँ पे कैसी गलती हुई है करके। कि किसी ने जान के किया है ये सर, किसी ने जान के किया है गडकरी साहब के चुनाव को सैबोटाज करने के लिए, वहां पे ज्यादा मुश्किलें डालने के लिए, या अपने आप हो गया है, अमूमन हो गया है? ये तो सब जांच का विषय है। प्रशासन इस पे कदम उठाएगा और प्रशासन इस पे थोड़ा पॉजिटिव भी है क्योंकि लोगों को वोट नहीं करने दिया गया कहीं कहीं पे। Because I am very disturbed at this. Because I am very this is very disturbing. हम भी उसी में हम भी डिस्टर्ब हुए इस बारे में, इसलिए मेरे मुंह से ये बात आज निकल भी गई। क्योंकि गडकरी साहब 5 लाख से ज्यादा वोटों की जीत के आए, ये हमारी इच्छा बहुत थी। अब थोड़ी बहुत मार्केट कम हो सकती है, हो सकता है अभी भी जीत जाएं, उसमें क्या है, अभी भी जीत जाएं, ऐसी क्या बात है, उसमें तो कोई वो नहीं, जीतेंगे तो। लेकिन वो मैं कहता हूँ 5 लाख वोट के मार्जिन से भी जीत सकते हैं अभी, ऐसी क्या बात है? अभी तो वोट रिजल्ट आने दीजिए ना, परिणाम आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। आएंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये तो साजिश लगती है मुझको, वेरी फ्रैंकली, मतलब मैं क्या बताऊँ अभी मैं सर मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, मैं तो बोल सकता हूँ। हमने कई पहलुओं पर इसका दृष्टि डाली है, हमारे जो वरिष्ठ है वो सब इस पे ध्यान दे रहे हैं जी। सर नागपुर से यू गॉट द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडिया। गडकरी जी टॉलेस्ट लीडर, देव फडणवीस जी टॉलेस्ट लीडर, बगल में मुंगेशकर जी वेरी बिग लीडर। यानी पूरे नागपुर तो आप भरे हुए खचाखच बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से। हमारे 10 में से 10 सीटें ना विदर्भ में तो कम से कम आएंगी। 10 की 10 आनी भी चाहिए। हर जगह पे आपने मायावती जी के भी कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो अम्बेडकर जी भी खड़े हैं। पार्टी है उनके ऊपर करेंगे, वो तो आएंगी ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो पिछली बार भी लेकर आए थे आप, 10 में से 10 पिछली बार भी थी, इस बार भी आएंगी, उसमें क्या है। लेकिन अगर नहीं आई तो विल बी वेरी सरप्राइज, बड़ी सरप्राइजिंग बात हो जाएगी अगर नहीं आई। नहीं आएंगी। हमारे जो नेता है आदरणीय नितिन गडकरी जी, मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हमारे नेता है बावनकुळे साहब, बहुत ही अच्छी इनकी क्रेडिबिलिटी है, मतदाताओं में इनकी बहुत सम्मान है और उनके बोलने के ऊपर में यहाँ के लोग विश्वास करते हैं। तो अभी गडकरी जी की तबीयत कैसी है? बीच में वो बेहोश हो गए थे परभनी में बोलते बोलते एक सभा में। हाँ, वो थोड़ा सा उसी समय ठीक हो गए थे तुरंत में जी, 15-20 मिनट के बाद सभा में भी गए थे जी। शरीर है थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते रहता है जी, दुरुस्त बात। यहाँ प्रधानमंत्री की 2-3 सभाएं हुई, 2 सभाएं बहुत अच्छी हुई। चंद्रपुर में, रामटेक के कामठी में सभा अच्छी हुई जी, वर्धा में सभा हुई, बहुत ही करीब 2 से 3 लाख 2.5 लाख पब्लिक थी उस समय। और चंद्रपुर में पहले कभी कोई प्रधानमंत्री आया है क्या मोदी जी के अलावा? मुझे याद नहीं आता कोई आया क्या पहले मोदी जी के अलावा? कोई और प्रधानमंत्री नहीं आया शायद चंद्रपुर में, कोई नहीं आया सभा के लिए नहीं है, सभा के लिए नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ, मतलब जी इलेक्शन रैली कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करी है वहां पे चंद्रपुर में। ताड़ोबा वगैरह है वहां पर पास व्याघ्र प्रकल्प जी, वहां पे घूमने फिरने आए थे शायद राजीव। सर वो तो अलग बात हो गई ना, वो जो ताड़ोबा का जो टाइगर रिजर्व है वो तो अलग बात हो गई। मैं कहता हूँ कि किसी ने
आज तक कभी सभा नहीं ली है वहां पे किसी प्रधानमंत्री ने। नहीं सभा नहीं ली है मोदी जी आप ये देखिए कितनी माइक्रो प्लानिंग की है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने जी। उसी से समझ में आता है कि जहाँ आज तक जो प्रधानमंत्री ने सभा नहीं ली वहां पर भी मोदी जी ने सभा ली, सिर्फ प्रधानमंत्री ने नहीं ली सभा। दुरुस्त बात। आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने 1952 के बाद, मतलब जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं तब से किसी प्रधानमंत्री ने चंद्रपुर में कभी सभा नहीं ली, आज तक कभी नहीं हुआ। ये आई थिंक दिस इज द सेकंड और थर्ड टाइम एंड बोथ टाइम्स इट हैज बीन मिस्टर मोदी, नॉट एनीबॉडी एल्स। राइट, थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। वी होप फॉर सम गुड न्यूज ऑन 4th of June। अगर अच्छी खबर आई या कुछ भी आया, मैं उम्मीद करता हूँ मिठाई भेजेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। बहुत दिनों बाद आप आए गोस्वामी जी, बहुत दिनों बाद। क्या करूं, मैं भी थोड़ा सा चुनाव में बिजी था, अब जवाबदारी निभाना रहता है ग्राउंड लेवल पे, इसलिए थोड़ा सा। चलिए सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार सर, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री हर हर महादेव। But this is very disturbing, isn't it, Pradeep ji? Yes. This is the first time I have heard the BJP complaining about the fact that the BJP supporters' names are not on the voters list. Is that an excuse? नागपुर गढ़ है, फडणवीस जी वहां से है, मुंगेटीवार वहां से है, RSS का हेडक्वार्टर गढ़ है, नितिन गडकरी जी वहां से है, और आप कंप्लेन कैसे कर सकते? सर, RSS के हेडक्वार्टर्स में लाखों नाम मिसिंग है वोटर्स लिस्ट में। मतलब क्या भूमिका बनाई जा रही है कि नितिन गडकरी जी हारने वाले वहां से? कहीं ऐसा तो नहीं है, पता कोई गॉड नोस। एनीवे, लेट्स गो, लेट्स आस्क आवर फ्रेंड आसिफ फारूकी साहब, कांग्रेस के आसिफ फारूकी साहब, उनसे हम बात करते हैं। आसिफ फारूकी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय हिंद सर, जय हिंद। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर, सब अच्छे हैं, बताइए सर। अभी सर आपसे एक, पता नहीं आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। अभी हमारे साथ वो, आप शायद सुन भी रहे होंगे, हमारे साथ चंदन गोस्वामी साहब थे नागपुर से, भारतीय जनता पार्टी के। वो बेचारे बड़ी शिकायत कर रहे थे कि उनके सपोर्टर्स के नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं थे नागपुर में। ये तो अचंभित करने वाली बात है ना सर, ये तो बता। अरे बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, ये जो इनकी रियलिटी है बीजेपी वालों की, वो खुल के सामने आ रही है। हम भी गडकरी जी को बहुत अच्छा इंसान मानते हैं जी, बहुत अच्छा नेता मानते हैं, और बावजूद इसके कि वो बीजेपी में है, उनकी बहुत सी पॉलिसीज हमने उनको बहुत करीब से देखा है जी। तो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है माइनॉरिटीज़ को, ख़ास तौर से जो डेवलपमेंट का काम किया है उन्होंने, और जो उनका स्वभाव रहा है, जिस तरीके से वो बिहेवियर रहा है, वो बीजेपी की जो गंदी सियासत है उससे दूर रह के उन्होंने बहुत सी चीज़ें मुझको पर्सनल लेवल पे नज़र आई है जी। और अचानक जब ये सवाल जो आपने किया तो मेरे जहन में ख्याल आया कि वो सांप को दूध पिलाना वो वाला हाल है, और ये लोग कभी किसी को नहीं बख्शते, और मेरे ख्याल से एक अच्छे इंसान को ये लोग उस नहज पे लेके जा रहे हैं कि वो नेचुरल तरीके से वो उसको डाई डाउन कर दें। मतलब हो सकता है कि जैसे अभी रूमर्स आ रहे हैं कि नितिन गडकरी साहब की सीट जो है वो फंसी हुई है, शायद फंसी हुई ना हो तो कम से कम उनको, मैंने देखा है कि हमारे माइनॉरिटीज़ में भी वो इक्वली पॉपुलर है सर। बहुत से माइनॉरिटी से जो वहाँ पे नागपुर में मैंने बात की, तो जो हेट्रेड बीजेपी के अगेंस्ट में है वो गडकरी के अगेंस्ट में नहीं है सर। वहाँ नागपुर का मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। नागपुर में वो सामने नागपुर में एक बहुत बड़ी दरगाह है, उसकी एक रिपेयर करनी थी, बहुत वहाँ पे वो कुछ उल्टा सीधा कुछ चल रहा था। मिस्टर नितिन गडकरी इंटरवीन, और वो पूरा जो इशू चल रहा था 10 के 15 साल से, लड़ाई झगड़ा सब कुछ चल रहा था, ही सॉल्व्ड इट विदिन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर उन्होंने सॉल्व किया। उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसी टाइम पे सब कुछ दे दिया। उनका भैया ये बनाएगा, ये होगा, वो होगा, और मुझे फौरन रिपोर्ट दीजिए। मतलब उस किस्म के आदमी है सर। 2 सेकंड मेरे ख्याल से वो उनका ये सब स्वभाव की वजह से ये माइनॉरिटीज उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करती है जी। और ये चीज़ हमारी इस वक्त की जो पार्टी है सत्ता के अंदर, उनको ये पसंद नहीं है, और ये पूरा प्लानिंग हो रही है कम से कम वो कम वोटों से जीते, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा वोटों से जीते। फारूकी जी, आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, हाथ बदलेगा हालात। एक जबरदस्त स्लोगन है, 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, 25 गारंटी राहुल जी का। इट इज फैंटास्टिक, और उसमें से सबसे बड़ा पिलर है हिस्सेदारी, न्याय, जो जस्टिस बोले।
मगर यहां पर आपके ही हिस्सेदारी न्याय आपको फेल कर दिया आसिफ जी। आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को पूरे महाराष्ट्र में एमवीए ने एक भी सीट नहीं दिया। एक नसीम खान जी के मिलते मिलते वो भी चला गया, वर्षा जी लेके गए। तो क्या ये हिस्सेदारी न्याय आप खुद प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? मींस प्रश्न तो होता है बिकॉज हम मानते हैं आपके मैनिफेस्टो सुपर्ब, मैनिफेस्टो वाज फैंटास्टिक फॉर एवरीबॉडी, बट यू नीड टू डू एलिमेंटरी थिंग्स योरसेल्फ आसिफ जी। सर देखिए, हम लोगों को आप बहुत ही शॉर्ट साइटेड वाले उस रास्ते पे मत लेके जाइए। ये बड़े ब्रॉड जहन से हमको सोचने दीजिए। आज जब 10 किस्म की पार्टियां दूसरे दिमाग की रख के एक हो सकती हैं, तो हम लोग ये हिंदू मुसलमान जो है ये करना बंद कर दें। नो डाउट एज अ मुस्लिम, एज अ माइनॉरिटी, मुझको भी इस बात का एहसास हुआ कि क्यों हमारे साथ में इस किस्म की जाती है। लेकिन इस वक्त माहौल ये नहीं है कि हम लोग हिंदू और मुसलमान करते बैठे। हमारा जो देश बचाने की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान बचाने की इस वक्त बात सेकेंडरी है। और इस नीयत को देखते हुए जो भी हमारी पार्टी ने फैसला लिया है, हम उसको बहुत जोरदार तरीके से न सिर्फ मैं वेलकम कर रहा हूं, बल्कि मैंने बाहर निकल के माइनॉरिटीज को देखा है कि उन्होंने ये सब सोचना बंद कर दिया है। सर, वो ये देख रहे हैं कि आज माइनॉरिटीज इस तरीके से वोट दें कि मोदी जो है वो उसको हरा सके। तो इस किस्म की बातें मेरे ख्याल से बहुत शॉर्ट साइटेड होंगी। और आइंदा जब हम सत्ते में आ जाएंगे या इस पोजीशन में आ जाएंगे, तो हम घर के अंदर बैठ के बात कर देंगे। उसके बहुत से अगर अलग तरीके हैं जिस तरीके से कॉम्पनसेट किया जा सकता है, न सिर्फ माइनॉरिटी को बल्कि आरिफ नसीम खान जैसे लीडरों के साथ भी जो जाती हुई है उसको पूरा किया जा सकता है। लेकिन हमने सुना है कि राहुल गांधी जी ने उनसे बात करी है, नसीम साहब मान नहीं, वो तो कल थे, वो कल पुणे में थे और उनके साथ बात की है। और क्यों नहीं करेंगे सर, वो मेरे ख्याल से दोनों के संबंध भी पुराने रहे हैं और हमारे ये पुराने नेता हैं आरिफ नसीम जी, और वो बहुत साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एक चीज आपकी है, ये मैं आपके सामने ये बात रखना क्योंकि आप यूपी से भी हैं। जी सर। सर, उत्तर प्रदेश के जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए हैं, जो खबर वहां से आ रही है, उत्तर प्रदेश से जो आ रही है सर, ये सुनने में आया है कि जिसकी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी घबरा गई है। अब ये तो आप ही बताएंगे कि असल में घबराई है कि नहीं घबराई। मुझे तो ऐसा लगता है, हो सकता है क्योंकि सडनली पहले चरण के बाद हिंदू वर्सेस मुस्लिम, प्रधानमंत्री जी का कहना, मुसलमानों के लिए आरक्षण जो दिया गया देवेगौड़ा जी द्वारा कर्नाटक में, उसके बारे में बात करना, ये मुझे लगता है कि ये संकेत है घबराहट का। क्योंकि पहले चरण में और फिर दूसरे चरण में मुसलमानों ने बहुत स्ट्रेटेजिक वोटिंग करी है, सुनने में ये आया है। उन्होंने सीधा ये देखा है कि यहाँ पे नॉन बीजेपी कैंडिडेट कौन जीत रहा है, उसको जाकर के सबके वोट इकट्ठे पड़े। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों के वोट का डिवीजन नहीं होगा। आपको क्या खबर है सर, ये बताएं। सर, मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं जी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के कुछ लोग जो ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, जी जो बैक साइड पे रहते हैं और हालात का जायजा लेते रहते हैं, वो मेरे कुछ पर्सनल दोस्त भी हैं, आपके भी होंगे। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि सर क्या पोजीशन है, क्या हालात है, हम लोग के लिए कोई संदेश, कोई बात की गई इस तरीके से ख्याल रखे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, अरे सर आप हैं कहाँ? बोले आप लोग तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हो। मैंने कहा क्या मतलब? तो बोले आपके लिए तो पब्लिक लड़ रही जी। तो मुझको ये बात उन्होंने बहुत डिटेल में जब समझाई तो मुझको समझ में आया कि ये बड़ी जोरदार बात इन्होंने कह दी। बोले सर आज पब्लिक को खुद एहसास हो गया है कि ये गवर्नमेंट कितनी गिरी हुई है, किस किस किस्म के लोग हैं, कितना ये झूठ बोलते हैं। अब हमारे लीडर्स को बोलने से ज़्यादा ये जो झूठ बातें बीजेपी वाले और ख़ासतौर से टॉप लीडरशिप जो है इनकी बोल रही है, तो एक तो वो कंफर्म हो गई। दूसरे जिस किस्म का इन लोगों का रवैया रहा है फीमेल्स के साथ में और ये लेडीज़ के साथ में जो रेप केसेस आ रहे हैं, तो आंखें गवर्नमेंट पब्लिक की खुल गई हैं सर, और ये मुद्दा वो खुद लड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अब फिलवक्त तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी आसान बात हो गई है, लेकिन ये आगे किस तरीके से इसको इनकैश कराएंगे, कैसे ये बॉक्स के अंदर बंद होगा और इसके क्या नतीजे आएंगे, ये तो 4 जून के बाद ही मालूम पड़ेगा सर। ये 1977 की बात है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तब भी ऐसा ही हुआ था कि नई जनता पार्टी बनी थी, उनके पास तो कोई ना कोई साधन थे, ना कोई संगठन था, ना कुछ और था।
अलग अलग पार्टियां मिल करके उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छोड़ करके, भले वो अपने दमकिप्पा हो या बागी सब हो, DS4 हो, इन सब लोगों ने मिल मिला करके और भारतीय जनसंघ हो, सब लोगों ने मिल मिला कर जनता पार्टी बनाई थी। तो ये सामने बात आई कि लोगों ने तय कर लिया कौन जीतेगा, किसी को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब बहुत बड़ी बात है अभी जो करेंगे। आपको लग रहा है कि ऐसा यूपी बिहार में वैसा ही हो रहा है? मेरे ख्याल से सर हालात उसी तरीके से बन रहे हैं, वरना हम लोगों ने कोई मार्केटिंग नहीं की थी जिस जमाने में राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे थे जी। लेकिन जिस तरीके से चारों तरफ से एक पब्लिक का उमांड, वो पॉपुलेशन घुस के आ रही थी, हुजूम चला आ रहा था, तो उस बात के संकेत थे कि पब्लिक कितनी इनसे नाराज है और कैसे परेशान है। और अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं सर, ये चीजें बहुत ओपन बाहर आ रही हैं। और ये ऑफिशियल ने जिस तरीके से मुझसे कहा कि पब्लिक आपके इलेक्शन लड़ी, आपके नेता कहाँ लड़ रहे हैं? आसिफ भाई, मगर आसिफ जी बात यह है कि जनरल इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद। मोदी जी, अमित शाह जी हर मन से कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में डॉसियर फाइल बेचते थे कि आपके आतंकवाद ये नाम है, वहां से आए, यहां बम फोड़ के चले गए, कैसे बम फोड़ दिया वो वर्णन करते थे। बोले अब डॉसियर बेचने का जमाना गया, ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, हम घर में घुस के मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक। ये राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा, they believe is the most important thing when general elections are concerned। फारूकी जी, how do you see that? क्या कांग्रेस इस पे compete कर पाएगा? नहीं सर, देखिए ये इनकी बातों में कोई दम नहीं है। पुलवामा में इतना बड़ा मामला हुआ, आज तक कोई बात खुल के नहीं आई, उनकी चीजें क्लियर होके नहीं आई हैं। और जिस तरीके से ये झूठ का बुलंदा ये बोलते रहते हैं, तो हमको तो भरोसा नहीं है। और आप अगर कांग्रेस सरकार का देख लें तो क्या कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से आतंकवाद से डील किया था, क्या वो खराब वो था? बिल्कुल नहीं था सर। 70 साल से उन्होंने अपनी चीज़ों को जिस तरीके से क्लियर करके रखी है, चाइना को और पाकिस्तान को बहुत ओपनली उन्होंने बहुत ही रोक के रखा था। तो मेरे ख्याल से बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। टफ डिसीजंस भी लिए हैं। इंदिरा जी ने जिस तरीके से टफ डिसीजन लिया है, ऐसे मोदी जी तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने करके दिखाया है, चाहे वो पंजाब के अंदर रहा हो, चाहे पड़ोसी मुल्कों के साथ में रहा हो, चाहे किसी वॉर का मामला रहा हो। आप उठा के देख लीजिए कि ये बड़ा ही सख्त कदम लिया है। तो देश के लिए अगर कोई कदम लेने की बात आएगी तो कांग्रेस सरकार या हमारी जो इंडिया सरकार है वो किसी तरीके से पीछे नहीं रहेगी और बहुत टफ डिसीजन लेंगे। राहुल गांधी जी हर मंच पर संविधान को अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि ये संविधान ने हमको सब अधिकार दिए, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, SC ST हो, हर किसी को संविधान ने हक दिया है। सोनिया जी ने हर मंच पे कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है संविधान बदलने के लिए। राहुल गांधी जी भी वही कर रहे हैं, इस संविधान को मैं बदलने नहीं दूंगा, लूटने नहीं दूंगा ना। पर मोदी जी भी यही कह रहा है कि संविधान मेरे लिए धर्म ग्रंथ है, मैं इसमें टोटल समर्पित हूं। तो लोग किससे कन्विंस हो? आसिफ फारूकी जी, यहाँ मोदी जी कह रहा है कि मैं समर्पित हूं संविधान के प्रति, मैं इसे छीनने नहीं दूंगा। राहुल गांधी जी, सोनिया जी कह रहे हैं कि डीप कॉन्स्पिरेसी टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं सर, झूठे का तो कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो कीचड़ उछालते रहे हैं पिछले प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, हमारी पॉलिसियों के बारे में, और जिस तरीके से उन्होंने कम्युनिटीज़ को लड़ाया है, हेट्रेड कायम की है, तो मुझको लगता है कि वो बहुत ही आसानी से, और जिस तरीके से वो टिप्पणी करते रहे हैं संविधान के ऊपर, CA NRC के ऊपर, कि हम इस तरीके से लगाएंगे, तो ये पब्लिक के दिल में बहुत ही डर है। और उस डर को दूर करने के लिए राहुल जी ने संविधान की जो बुक है, बल्कि हर कैंडिडेट से अपने कहा है कि उसके अपने साथ में रख के और कसम खा के तुम फॉर्म भरो कि हम ये बदलने नहीं देंगे और हम लोग इसके लिए अपनी जान दे देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। तो आपके मुताबिक आज की तारीख में जो मैसेज है, संदेश जो है कांग्रेस का, वो लोगों तक जा रहा है सर? सर बहुत आसान, बहुत अच्छे से जा रहा है सर, कि संविधान को हमको बचाना है
और मुल्क को जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन से बल्कि आपस में लड़ा के जिस तरीके की वो बर्बादी करना चाहते हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर के जो उसूल थे, जिस तरीके की उन्होंने इस संविधान को बचा के यहाँ तक लेके आए थे, वो उसको खुर्द-बुर्द ना हो, उसके अंदर कोई गड़बड़ ना कर पाए, तो हम लोगों को इस किस्म के कदम उठाना पड़ेगा। और उस मामले में कांग्रेस गवर्नमेंट और इंडिया ब्लॉक जो है बहुत सख्त है सर। 2009 में उत्तर प्रदेश के अगर नतीजे देखे जाएं तो कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, 21 2009 में। आपको लगता है कि इस बार तो आप खैर सिर्फ 17 सीटें लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार 10 या 15 सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की? सर आप कांग्रेस की सिर्फ मत जोड़िए, आप इंडिया ब्लॉक की बात कीजिए सर। और क्योंकि हम लोग मिल के लड़ रहे हैं सर चारों तरफ से, और वो जैसे एक शेर है ना सर कि ये बड़ा मुश्किल मरहला है और इसमें एक तूफान खड़ा हुआ है और सबको मिल के काम करना पड़ेगा। तो सिर्फ कांग्रेस हो या ये एनसीपी हो या शिवसेना हो, शिवसेना में भी कौन सी सेना है, बल्कि मैं आज रास्तों पे से गुजर रहा था तो मैंने एक घड़ी देखी और उस पर 150 लोग थे, तो मैंने कहा देखो चलो ये अपनी पार्टी जा रही है, तो किसी ने मुझको टोका नहीं, अपनी पार्टी नहीं है ये दूसरे की पार्टी है, ये तो चेंज हो गई। तो मेरे जैसे आदमी को जब कन्फ्यूजन है तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करके न सिर्फ हमारे दिलों में रख दिया है सर, पार्टियों के बीच में कितना कन्फ्यूजन इस गवर्नमेंट ने करके रख दिया है और बहुत ही भोंडे तरीके से किया है। मैं तो ये नहीं उंगली उठाऊंगा कि इलीगल तरीके से किया है, लेकिन मैं ये बोलने में मुझको कोई डर नहीं है कि बड़े भोंडे तरीके से सारी पार्टियों को इन्होंने अलग करके रख दिया है सर। एक सेकंड सर, उत्तर प्रदेश की बात जरा कर लें, क्योंकि सर देखिए ऐसा है कि 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, 17 सीटों पर आप हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर ये अगर आपने हिंदी बेल्ट में स्पेशली उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी की 64 सीटें आई थी, अगर इंडिया अलायंस ने वहां पर उनकी 10 या 15 सीटें भी कम कर दी तो बीजेपी को बहुत मुश्किल हो जाएगी। करेक्ट, मुझको ऐसा लग रहा है। तो बिल्कुल होगी सर। तो आपको लगता है कि आप लोग सफल होंगे इसमें? मतलब हम लोग को लगता नहीं, बल्कि अब तो धीरे धीरे हमको ये लग रहा है कि थोड़ा और वक्त मिल गया तो हम लोग इस पोजीशन में रहेंगे कि हम लोग गवर्नमेंट बना सके सर, इंडिया ब्लॉक की। क्या बात है सर। आसिफ जी, सबसे बड़ा चैलेंज अमित शाह जी का कहना है कि इफ द इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस कम्स टू पावर, दे विल ब्रिंग बैक आर्टिकल 370 वापस लेके आएंगे। ट्रिपल तलाक जो हमने अबॉलिश किया है, ट्रिपल तलाक को आप वापस लेके आएंगे। CAA आप कानून को रद्द कर देंगे, NRC आप रद्द कर देंगे, आप न्यू क्रिमिनल लॉज जो लेके आए अमित शाह जी उसको आप रद्द करेंगे, जो चिदम्बरम जी ने खुलेआम ऐलान कर दिया वी आर गोइंग टू स्क्रैप इट। तो ये ट्रिपल तलाक हो गए, आर्टिकल 370 हो गए, CAA हो गए, UAPA हो गए, NRC हो गए, ये अगर आप वापस लाएंगे तो अमित शाह जी और बीजेपी का कहना है यू विल बी जो राष्ट्रीय सुरक्षा वाली बात है, नेशनल इंटरेस्ट वाली बात है, उसको कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आसिफ जी, कैसे आप कन्विंस करोगे लोगों को? सर मैन्युफेस्टो में हमारे बहुत क्लियर जो चीजें हैं वही होने वाली हैं। ये झूठ बोलते रहे, इनके आप सुनते रहिए सिर्फ। अब एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा सर, आप ट्रिपल तलाक को इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं, अरे मुसलमानों में कितने % तलाक होती है सर, और उसके ऊपर आपने क्या करके दे दिया है कि आप उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं। लेकिन जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, आपके पास बड़ा सा माइक है, आपकी आवाज ज्यादा निकल रही है, तो उसमें ऐसा लगता है कि बड़ा काम करके दे दिया है। 70 सालों में हिंदू जो है खतरे में नहीं था। आज हर वक्त हर कोई भी आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। सर कहाँ गए आप? कब खतरे में थे और कब हैं? आज मुझको लगता है ज्यादा आप खतरे में हैं। हिंदू आज ज्यादा खतरे में है कि उनके बाल बच्चे जो है काम से निकल के इस गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हैं, इनकी बातें सुन रहे हैं और अपनी जो मेन लाइन है, स्ट्रीम लाइन जिसमें वो काम काज करते थे, उससे दूर भागते जा रहे हैं, जिसका खमियाजा उनको आगे चल के बहुत बड़ा भरना पड़ेगा सर। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, क्योंकि आपने ये बात कही है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा को मन नहीं था आपसे पूछने के लिए। सर ये क्या बात है कि जब बीजेपी सरकार में आती है हिंदू खतरे में आ जाता है, ये क्या चक्कर है?
नहीं नहीं सर, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है कि नहीं, हिंदू divide and खतरे में rule- है, ये बात तभी आती है जब बीजेपी की सरकार होती है, उसके पहले नहीं आती। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है सर इनकी। आपको और लगता इस है, तरीके से आपको वो लगता सत्ता में रहना है, चाहते चलिए हैं। हिंदुओं की बात छोड़िए, आपको लगता है मुसलमान खतरे में? क्या 24 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। आरिफ साहब, आसिफ साहब, जी 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 सर, मैंने कहा ना कि एक टिकट नहीं दिया तो इतना बड़ा वावेला मचा के रखा है। खुद मैंने बीजेपी वालों को कहते सुना कि देखिए कुछ नहीं दिया। अरे साहब, आप हमको क्यों बोल रहे हैं? हम लोग की एक अलग पॉलिसी है। हम लोग इस वक्त बड़े तूफान से जूझ रहे हैं, उस तूफान को हमको दूर करना है। और जी, आप वो कुछ पूछ रहे। सिर्फ एज अ मुसलमान नहीं होने वाला सर, उसमें हमको हर जात हर बिरादरी का साथ चाहिए। न सिर्फ उनका चाहिए बल्कि आपका चाहिए, अगल बगल सारे का चाहिए। और इसलिए नहीं चाहिए कि हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में, इसलिए चाहिए कि ये मुल्क खतरे में है सर। माओइस्ट टेंडेंसीज, राहुल गांधी जी माओइस्ट आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ा रहे। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, आसिफ जी, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, राहुल जी का कहना है कि 1% इज होल्डिंग 40% ऑफ द वेल्थ और मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है ये माओइस्ट टेंडेंसी है, ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, ये चीन के जो वेल्थ है वहां आपके एक्सरे मशीन, कांग्रेस के एक्सरे मशीन हर घर में जाएगा और मंगलसूत्र और स्त्रीधन को छीनेगा। इनहेरिटेंस टैक्स 55%, मरने के बाद सरकार 50% आपका प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा। ये माओइस्ट टेंडेंसी है। ये टेंडेंसीज जहां पर पैदा हुआ वो खत्म हो गया वहां पर। यहां पर राहुल गांधी जी इस चीज को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरेंट टैक्स? I can't hear you. We can't hear Mr. Faruqi. Can somebody please check the audio? Please, thank you very much. इकोनॉमिक Right, we could बाय hear द him. एक्सपर्ट सर। Yes, we can hear you. पॉलिसी है जी, वो हमारे एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे और रेस्ट हमारा मैनिफेस्टो के अंदर पूरा लिखा हुआ है। उनके झूठ बोलने से, उनके प्रचार करने से कुछ नहीं होने वाला है। वो बेचारे जो सीधे साधे हमारी जनता है उनको थोड़े बहुत बहका सकेंगे। अदरवाइज इस जनता को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि कांग्रेस की इकोनॉमी पॉलिसी बहुत ही क्लियर और बहुत अच्छी रहती है। लेकिन एक चीज है सर, इसमें बहुत बड़ी चीज है एक, अगर आप लोग सफल होते हैं तो क्या है कि लोगों से आपसे क्या उम्मीद है, ये मैं आपको बताता हूं, आगे आप इसका जवाब देंगे। असली उम्मीद लोगों की क्या है कि आप पब्लिक सेक्टर को रिस्टोर करेंगे। जैसे पहले पब्लिक सेक्टर कंपनीज हुआ करती थी, BHEL थी, बाल्को थी, अलग अलग हमारी ONGC थी, हमारी जितनी ऑयल कंपनीज थी, सवर्ण कंपनी जितनी थी हमारी, जिनको ज्वेल्स ऑफ इंडिया कहा जाता था, इन सब को आप रिस्टोर करेंगे ताकि लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिल सके। और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको आप परमानेंट करेंगे, क्योंकि अभी क्या हो गया है, सरकारी नौकरी में भी आपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। सो यू डोंट हैव टू गिव रिजर्वेशंस। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, ओल्ड पेंशन स्कीम जो आप बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग रीइंट्रोड्यूस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर आप लोग गंभीर हैं, क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम आई है उससे पूरी जनता त्रस्त है। और तीसरी चीज, जो अग्निवीर स्कीम है, इसकी जगह पर आप असल में जो पुरानी रिक्रूटमेंट स्कीम है फौज की, उसको वापस लाएंगे। अब आप बताएं सर। आपके सवाल से मेरी चीज एक तो क्लियर हो गई कि पिछली जो गवर्नमेंट हमारी रही है 70 साल वाली, उसमें इसका मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिसी थी जी। और इस बात को देखते हुए मुझको लगता है कि हम अपनी PSU रिस्टोर करेंगे, रेलवे की सर्विसेज को रिस्टोर करेंगे। GST जो आया है ये बहुत ही अच्छा और सही साधन है, उसके अंदर उसको हम लोग और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे और इनकम को इंक्रीज करने के जराए पैदा करेंगे सर। और चलते चलते ये भी बता दें सर, इंडिया अलायंस की कितनी आ रही हैं सर सीटें? आपने कहा कांग्रेस के बारे में मत पूछना, इंडिया अलायंस के बारे में पूछ रहा हूँ। बस वो जितनी मोदी जी अपनी बोल रहे हैं, हम लोग की आप सोच लीजिए उतनी हमारी आ रही है। क्या बात है साहब, क्या बात है। You want to give a one-line comment on वन लाइन सर? आप वो आजकल मोदी जी हम लोग के बारे में यही सब बोल रहे हैं, उनकी बातें हमारे लिए सोच लीजिए। जो उन्होंने अपने बारे में कहा है सब हमारी तरफ है सर। जी बिल्कुल, लेकिन आपका मैनिफेस्टो पॉपुलर करने में मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है। आपको थैंक यू बोलना चाहिए उनको।
आज तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतना ज्यादा नहीं पढ़ा गया जितना मोदी जी के बोलने के बाद पढ़ा गया सर, मानना पड़ेगा। क्योंकि ये सर मोदी जी और यहाँ की जनता को आप शाबाशी दीजिए। आई एम थैंकफुल टू ये जनता जो इनको बहुत अच्छे से समझ गई है और उनकी बातों को देख के हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ा और बहुत ही अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से आज अच्छे दिन हमारे आ रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। मोदी जी घबरा Mr. Asif Faruqi, and very confident, Mr. Asif Faruqi. He's not. He's an eternal diehard congressman. Yes, he is. But I hope they do better. That's all that I'm saying. I don't really see them winning, but I hope they do better. You need a strong opposition in the country, whether you like it or not. And at the moment with us, our old friend, Mr. Raju Wagmare, now of course with the Eknath Shinde Sena, and very happy that he is with the Shinde Shiv Sena. Raju Wagmare साहब नमस्कार। नमस्ते सर। Sir, how are you, sir? Very good evening to Very good evening to you, sir. Mr. Both of Eknath you. Shinde. Mr. Eknath Shinde is a workaholic. I think he works 24/7. I don't think he ever sleeps. And he is a man, I think, who believes in fulfilling all promises that he has made. right, sir. Right, absolutely right. So you must be a very happy man. So tell us about your state of mind. I can see you are very Sir. relaxed. I can see your face. You are completely relaxed and very happy. Please go ahead. Sir, sir, whatever I was facing in Congress, this is exactly, absolutely 360-degree about turn. The leader is very well with people. एकनाथ शिंदे साहब पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मिल चुके हैं। हर एक इंसान उनके सामने आता है, उसकी आंखों से उनको पता चलता है कि क्या उसकी कठिनाइयां हैं। लास्ट का बंदा अगर 3 भी बचते हैं तो उसको मिले बगैर साहब इधर घर पे जाते नहीं है। तो पूरा दिन काम करने वाला आदमी, रास्ते पे खड़ा रहने वाला काम कर रहा है, तो लोगों के दिल में ये बात लीडर हो तो ऐसा, मैं तो एयर कंडीशन में बैठने वाले लीडर जो है वैसा थोड़ा भी ये लीडर नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी that I took a decision with a person to go along with who can do the development in Maharashtra, as well as he can develop the each and every person in Maharashtra, and their life has to be better than what it was before. So I'm very happy to go with Mr. Eknath Shinde and the way he is taking care of everybody. Infrastructure are doing the best in infrastructure in India. Projects of infrastructure than any other state in India. We are the number one state who bring the FDI, the most FDI in Maharashtra. So the things are looking very bright. वाघमारे साहब, The future is good. वाघमारे साहब, And the present प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी का प्रेज किया, तो नॉर्मल पॉलिटिकल सर्कल में चल रहा है कि बहुत सारे सिंपैथी वेव शायद उद्धव ठाकरे जी के पास इफेक्ट जा रहा है, विल ट्रांसलेट इनटू वोट्स फॉर उद्धव ठाकरे. Is it true? In Konkan, it seems to be a massive sympathy wave for Uddhav Thackeray. How do you see? Ground reality क्या है, वाघमारे साहब? सर मैं बताता हूँ क्या हो गया कि जब ही एकनाथ शिंदे साहब ने ये डिसीजन लिया कि रिवोल्ट का डिसीजन लिया, तो तभी इनको ये सब बातें लोगों के सामने लेके आने को मिली नहीं कि जो बातों से इन्होंने ये डिसीजन, and the whole situation was very against Mr. Eknath Shinde that time. But now the time has been gone. The many things why he has took the decision, he himself is talking also, and we are as a spokesperson for Mr. Eknath Shinde and the Shiv Sena. I am also bringing out there are the many
political situation that why he took the decision. And that's what we are bringing in front of people, and that is killing that sympathy wave. There is no sympathy has been remaining with people now. People understood why Mr. Eknath Shinde left Shiv Sena. The main reason for it that Mr. Uddhav Thackeray want to have himself as a chief minister as well as his son. And he completely left the Hindutva, what he believes when Hindu Hruday Samrat, his father, Mr. Balasaheb Thackeray, was believing. So he left that path completely. And Mr. Eknath Shinde wanted to go on that path. Mr. Eknath Shinde was talking about the Swabhiman, he was talking about the pride of Hindutva. And that was not served by Mr. Uddhav Thackeray, that is number one. Mr. Uddhav Thackeray tried to corner Mr. Eknath Shinde because Eknath Shinde was number 2 guy in the party. When Corona was there, when Mr. Uddhav Thackeray was in his house, that time Mr. Eknath Shinde was on street. Yes. He was serving people, he was serving patients, he was talking to all the MLAs, he was giving them help. He is the guy who cannot sit at home. He is the guy wherever there is a problem, he is the guy who was there on the street. So, the person like him, when Mr. Uddhav Thackeray realized that this person, if my son has to become a chief minister, then Mr. Eknath Shinde has to go out. I'll give you one example. Mr. Eknath Shinde was a parent minister for Gadchiroli district, which is Naxalite area. The police department told Mr. Uddhav Thackeray, and the assistant told that he required a Z plus security because that time the Chhattisgarh का भी वो Naxalite लोगों ने मार डाला था कांग्रेस वालों को. All those things was there. But you will not believe, as a chief minister, Mr. Uddhav Thackeray did not sign on a paper that so Eknath Shinde should get a Z plus security. Can you imagine a number 2 guy in his party and he did not give him a Z plus security? So it was like very, very sad situation that without Z plus security he should go there and maybe something bad can happen and he will go away. Sir, That news just in. the Uddhav Mr. Thackeray and Wagmare, his you might party be went. interested. You might The- be interested the- to know, Mr. Wagmare, that an Indian Air Force convoy has just been attacked by terrorists near Poonch just 10 minutes ago, and about 5 Indian Air Force personnel have been injured. This is the first report which is coming. We don't know the exact state of casualties. Would you like to comment on that, sir? Poonch in This is Jammu and Kashmir. absolutely a situation. This is very sad situation. When the election is there, this kind of things has been happening. And when the whole system is working in an election area, if this kind of situation is happening, is very sad. And my condolences with the people who are injured and people who are get martyred into this area. And this should not happen. The government should Ji. take a strong and very strict action on this kind of situation because it is a question of our security of our country and we cannot jeopardize that at any cost. So the terrorist has to be punished. Whoever is behind it, it has to be get punished, and we have to be more alert and we have to be more careful because if this kind of things are happening. But thankfully nobody did yet. Wagmare Sahab, Prime Minister Modi praised Uddhav Thackeray. He said, you are Balasaheb Thackeray's son, so I admire that, I respect you. Because Balasaheb Thackeray जी का इतना ग्रेटिट्यूड है हम पर कि हम कभी इसको भरपाई नहीं कर पाएंगे. और आगे जाके कहा कि मगर आप जिनके साथ खड़े हो, आप औरंगजेब के तारीफ करने वाले लोगों के साथ खड़े हो, आप सावरकर का आलोचना करने वाले लोगों के साथ खड़े हो,
ना ये स्टेटमेंट आप कैसे देखते हो? दोनों स्टेटमेंट है, उन्होंने प्यार और मोहब्बत भी जताया और ये भी कहा कि आप कहां पर खड़े हो, आपको पुनर्विचार करना चाहिए. हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट, वाघमारे साहब? See, if you look into the situation with Mr. Uddhav Thackeray, the Shiv Sena, Balasaheb Thackeray, and Prime Minister Narendra Modi, they goes very long back, and definitely Mr. Modi, our Prime Minister, is having great respect for Mr. Balasaheb Thackeray because they both believe on Hindutva. They both on you can say the rightist of the Hindutva, and they believe that the Hindutva has to be there in our country. So naturally there is a natural bonding is there between them. That is number one. Their relationship was very long. So because of that, because Uddhav Sahib is a son of Balasaheb Thackeray, so naturally he has a very good regards for Uddhav Thackeray as his son. But political background में Uddhav Sahib has gone to the different path, which is the opposite path of Prime Ministers has taken. So naturally, politically, he didn't feel that strong way towards Uddhav, but as a family, because in politics, like you maybe not agree with the political views, but definitely you can be a good friends or you can be have a respect towards each other, and that respect Mr. Prime Minister has shown towards Uddhav as a family respect. But at the same time, he gave and he told him that the way he is with the people, those people are not believing on Hindutva, those people are not believing on Savarkar, those people are not believe the complete thought process what the between BJP and Shiv Sena was having. So definitely he is on wrong side, and the Prime Minister even said that when he was sick, that he asked him for how his health was. So that shows that the Prime Minister has kept the family ties differently and the political ties differently, and that's the way it's supposed to be. Any mature politician should do that, and that's what the Prime Minister shows to Mr. Uddhav Thackeray. Nothing else. Prime Minister is very clear on his thought process that the side which Uddhav Sahib is taken, that side is completely wrong side, and it's a wrong path that which he had chosen, and he doesn't want that Mr. Uddhav is supposed to be stand on that side. So that's the message Mr. Prime Minister has given him. But वाघमारे साहब, कांग्रेस लीडर नाना पाटोले जी ने आलोचना किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के, बोले प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा नट सम्राट है, नट सम्राट. He gave the title. Nana Patole called Prime Minister Modi nut सम्राट. Now how do you reconcile? Is he acting? Is his acting so impressive? जो नाना पाटोले जी इस प्रकार से बोले. See what happened. Mr. Nana Patole is a Congress Maharashtra president, and he is a very hard-spoken guy because I worked with him. And definitely the opposition is going to attack on Prime Minister when Prime Minister is talk like this. But I can ask Mr. Nana Patole that my relationship with Mr. Nana Patole till today is the same relationship, and I have a same feeling and respect towards Mr. Nana Patole, though I left the Congress. So tomorrow when I will say something to my leader, my ex-leader, Mr. Nana Patole, what Nana Patole is going to say that I'm acting, he will not say that. And if he says that, then he is talking politically. Because if deep inside in his heart he knows that Dr. Raju Wagmare likes him and he cares about him. So that's how it is. In politics, like, see, I know Mr. Uddhav Thackeray personally, I know Mr. Aditya Thackeray personally, but politically now we are on different path. So I'm not going to spare them politically, but in other relationships, and you should have, and everybody should have, and that is what I believe, that politics is not like a completely real war.
It is a war of thoughts. It's a war of principles. It's a war of your different views. So it's not a war of personal relationship, no. So everybody should think like that, and he should not say about Prime Minister like this that he is acting, because Prime Minister is definitely can say that because he has long-term relationship with Mr. Balasaheb Thackeray. And when I'll remind you, when there was a Gujarat riots and Mr. Atal Bihari Vajpayee was wanted to sack Prime Minister, that time Chief Minister Narendra Modi ji, and that time the Balasaheb Thackeray who was there, and he said publicly that nothing wrong has been done by Mr. Narendra Modi. So that helped that time to save Mr. Narendra Modi. So that kind of relationship they must be having. So when you have such a long relationship, you have family ties, so definitely Prime Minister is talking with his heart and he is not acting. And the opposition should respect that rather than criticize or taking the politics into the lower level. You know, Wagmare साहब, शरद पवार जी क्रिटिसाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एक तो उनके फैमिली पर क्रिटिसिज्म किया, उससे पहले उन्होंने कहा डिक्टेटरशिप जिस प्रकार से है 2024 के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर वापस बनते हैं तो देयर विल बी टोटली अ डिक्टेटरशिप रूल, एंड आगे जाके कंपैरेटिव टू पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, रशिया, he said then the end of dictatorship. Now how do you see शरद पवार जी का स्टेटमेंट? नाउ पवार साहब भी जिस प्रकार से कहा कि डिक्टेटरशिप अब आने वाला है, सर ये कैसा है कि शरद पवार जी अगर डिक्टेटरशिप का बात नहीं करेंगे, अगर संविधान बदलने वाले हैं ये बात नहीं करेंगे, तो उनको वोट कौन देगा? इस इंडिया में आप डर फैला के ही वोट खरीद सकते हो। अभी इनके पास कोई मुद्दे है नहीं, अपोजिशन के पास, पवार साहब के पास, ना इंडिया गठबंधन के पास कोई भी मुद्दे नहीं है। तो अगर आपके पास मुद्दा नहीं है तो आप किस बातों पे बात करोगे? तो आपकी बातें यही रहने वाली है कि अरे भाई डिक्टेटरशिप आएगा, अरे भाई संविधान बदली हो जाएगा। अरे ऐसा कुछ होने वाला है क्या? अगर संविधान बदलने का रहता था सर, तो लास्ट टाइम बीजेपी गॉट 303 votes, like 303 MPs. Yes. They was with NDA, they was having 359 MPs. Right? Yes. So they required only 16 or 17 MPs to become a 2/3 majority to change the constitution or make any changes. So they was very close. Why they didn't try to do that way and get 16, 17 MPs to do whatever they want? But they didn't. So this is a false propaganda what India Alliance is doing, that if Prime Minister comes, they will change the constitution. God bless you, sir. So, in effect, what Because you're really this- saying is that there will be no change in the constitution. Absolutely, because see, during the Congress time, Congress was in a power almost 75 years, and Congress made the changes 80 times, 80 times. And last 10 years, how many changes has been Prime Minister Modi did? Comparatively, that is very less. So why they will change the constitution? For what? Ji, Pradeep ji. There is no logic behind it that they will change the constitution. For what? I know. They are going to get any benefit after changing the constitution? See, science cannot say or cannot prove what is the benefit Prime Minister will have if he change the constitution. Nothing. So why he will do that? And if he wanted to do that, when he would have done long time back, when he was having 359 MPs along with him, only 18, 19 MPs was there, he would have done it. Why he didn't do it that time? वाघमारे साहब, उद्धव ठाकरे सेना द कैंपेन जिस प्रकार से चल रहा है कि
यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ नहीं है, यहाँ पर पूरे जितने बिजनेस हैं, एंटायर बिजनेस वाज शिफ्टेड टू गुजरात, out of the country. There was a law and order failure when the state was concerned. The continuous campaign Uddhav Thackeray Sena is doing based on these very facts, the security, business out of the country. How do you see out of the state to Gujarat? तो इस कैंपेन को आप कैसे देखते हो? सर ये दिस इज अ फॉल्स प्रोपोगंडा व्हाट मिस्टर उद्धव ठाकरे इज डूइंग. ये पूरा फॉल्स है प्रोपोगंडा. सी खाली फॉक्स वेदांता फॉक्सकॉन ये कंपनी गुजरात गई, लेकिन ये कंपनी गुजरात गई उस वक्त ये जो महायुति की जो सरकार है इसको सिर्फ 2 महीने हुए. तो फॉक्सकॉन वेदांता को गुजरात जाने का जो बातचीत चालू थी वो महाविकास आघाड़ी के समय 8 महीने से चालू थी. तो इन्होंने उनको जो चाहिए वो दिया नहीं, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया जाने का. वो तो क्या महायुति के टाइम तो खाली 1.5-2 महीना हो गया था एंड दे वेंट टू गुजरात बिकॉज उनके पास कुछ चारा नहीं था. और ये लोगों ने उनको जो कंडीशंस थी वो कुछ पूरी नहीं की. नंबर 2, देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र. ये आर नंबर 1. The infrastructure projects which is going on in Maharashtra, we are number 1. 8 lakh crores projects are already going on. FDI, the Maharashtra is number 1 to bring more FDI in state. There are all the roads in Mumbai which getting concrete. Railways, there is a different routes of railways are going on. So everywhere there is complete development is going on because Mr. Eknath Shinde believe on development. So all the development is going on, and because of development there is the jobs. Because of development there are jobs. Because of development there are infrastructures going on. Because of development software companies are coming. So everything is fine. Where Mr. Uddhav Thackeray getting this idea that there is no development is going on? He should check the numbers. He should check which projects is going on, and he should prove that there is no development. What I am telling you, this is all development has been done. So, Raju Wagmane Sahab, in your opinion, out of the 48 seats in Maharashtra, how many is NDA going to win? Sir, Mahayuti will be 45 seats. How much, sir? 46? 45, hands down, 45 seats. 45 Mahayuti seats. will have. Wow, wonderful. Thank you Yes. so much, sir. It's been a great pleasure talking to you. You are traveling somewhere. Thank you so much Thank for you, joining us sir. from your Thank car. you, thank you. Thank you very much. Yes, thank you very much, sir. All right. Well, Pradeep ji, one more election and one more terrorist attack. Thankfully, this time, the number of injuries are only 5. We can have the visuals on now, please. Can you please put on the visuals of the Poonch attack? सूरनकोट है एक जगह पूंछ में, जम्मू कश्मीर में. वहाँ पर 2 इंडियन एयरफोर्स के व्हीकल्स थे जिसमें टेक्निकल टीम जा रही थी. उसके ऊपर हमला किया गया. टेररिस्ट ने आकर के उस पर हमला किया, उसको फायरिंग करी. नो RDX इन्वॉल्व, कोई एक्सप्लोजन नहीं था, लेकिन 5 लोग मारे गए हैं. 5 मारे क्यों? नहीं, they're not dead. I'm so sorry. 5 people are injured. 3 of them seriously. 3 of them have been flown to the military hospital in Udhampur, which is close by helicopter, and they are being treated over there. So I don't think these terrorists can take the fact that Jammu and Kashmir is going to polls, कि वहाँ पे चुनाव हो रहा है. सीधी बात है. And this, by the way, is an area of Jammu. It is not Kashmir. It is not the Kashmir Valley. ये जम्मू का इलाका है वहाँ पर. And well, it's really and truly sad what's happened. This is the first major attack in Jammu and Kashmir in 2024. We are in the month of May. This is the first major attack on
um, on Indian Armed Forces personnel, which is, you know what, people were expecting something like this. I don't believe in all the wild conspiracy theories which are going on right now, but there are 5 personnel who have been injured. I hope they're all right. They're being treated, and they're being treated very, very well. The Rashtriya Rifles team is already there. They've cordoned off the area. पूरे के पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है. मुझे नहीं लगता कि ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने ये जो कायर, actually they shouldn't even be called terrorists. They are actually these cowardly killers who come from across the border. पाकिस्तान से आकर के कभी ट्रक के ऊपर फायरिंग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं. तो Sir, there are 2-3 things that we need to discuss about. Article 370 के बाद BJP talked about totally the sterile Kashmir जिस प्रकार से उन्होंने किया था. And Rashtriya Suraksha is one of the pillars of what they're talking about. That we, with us, you're assured that the borders are protected. The borders are safe and sound with Prime Minister Modi in seat, in the saddle. तो 2-3 चीज है. तो how are you going to convince the people? Because it's an ongoing, because Congress is definitely going to exploit this particular thing, because I hope it doesn't happen, but who will not? It's an election season now. That's right. Or मान लीजिए अगर if the shoe had been on the other foot, the BJP would have done the same. Didn't they do it at the time of 26/11? I remember Mr. Modi holding a press conference, even as the terror attack was going on in the Taj. अभी तक याद है मुझको. So it's not as if the BJP wouldn't have exploited it. The BJP and second thing जो बार-बार जयशंकर जी हर मंच पर बोल रहे थे कि Modi ji has changed the retaliation where terror is concerned. Zero tolerance to terror. The terrorists don't have rules. The response to terror cannot have rules. And Modi ji ने वो दिखा दिया. और मोदी जी हर मंच पर ये बोल रहे थे कि हम डॉसियर देना बंद कर दिया. ये डॉसियर में ये होता था कि आपके आतंकवादी यहाँ से आए, वो ये कपड़ा पहना था, ये बंदूक पहना था, ये इस एक्सप्लोसिव को रखे, उड़ा के वापस चला गया. बोले the time for dossiers have changed and we have got a different नया भारत का सब. तो ये it again, you might call it one of the rare incidents or sporadic incidents, but then it reflects on the very plank that BJP is pillars of the entire thing, the entire campaign. There's Rashtriya Suraksha, Rashtrabad, retaliation to terror, zero tolerance to terror. Now this sadly, unless a huge retaliation takes place, this is not going to again satisfy the people that the country is safe. And if a retaliation takes place, I'm sure the opposition is going to say this was all stage managed. Because last time they won because of Pulwama, this time they might win because of this. I doubt it very much though, because there have been only 5 injured IEF personnel. I don't think this could be that, but and very frankly, as far as the opposition is concerned, I hope they also behave in a responsible manner and they don't try to make political capital out of this. I hope. That's all that one can hope. But an attack on the country, on the state, जी बिल्कुल. Cannot be tolerated. And we have during the last 10 years been talking about these things, that there will be zero tolerance with terror. This is an act of terror. It is an act of terror. There is no doubt about it. And you can't have kid gloves, wearing kid gloves and talking about it. And this is not what the nation will expect of Prime Minister Narendra Modi. That's right. And the country expects, like when Jaishankar was trying to understand that there was no response to 26/11, because the then government thought that the response was more costlier than not to respond. So they thought profitable is not to respond, and they took the decision not to respond. But I don't think now that is that, because we have been suffering for a long time, and during the entire campaign and across the country, people believe that we are having a sigh of relief that things have changed, things are changing. But this should be the ultimate straw where terrorism is concerned. And even though the hunt is on for the terrorists, I don't think it should just remain at that. We should retaliate. We should go across the border and retaliate, because these fellows have come from across the border. We should retaliate across the border, because this should not be tolerated at all, irrespective of whatever the opposition says or whatever whoever says. The fact is, anybody who attacks our armed forces, we cannot leave them in peace.
जो मोदी जी बोलते हैं ना, घर में घुस के मारेंगे। Exactly. अब वक्त आ गया, जरा घर में घुस के मारिए और ऐसे मारिए कि दोबारा ये ना हो। सीधी सादी बात वो है। पूरे जितने टेरर पैड्स है, टेरर लॉन्च पैड्स है अक्रॉस द बॉर्डर, आई थिंक विद दिस इंटेलिजेंस नेटवर्क यू ऑलरेडी नो वेयर दैट इफ यू न्यू दैट during the Balakot strike that entire terror camp was up the mountain and you knocked off that entire terror base out there. So I think it's time that you already know where. Our intelligence over the years has been, if जो बोल रहे हैं कि आज सच कि कनाडा में जाके वहाँ पर eliminate करना, crossing the border and knocking the terrorists down in various countries, the allegations जो लग रहे हैं, if that is true, then it's time for Prime Minister Modi to show that he means it. It's not just अरे भाई talking about it. ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि आप बॉर्डर के ऊपर आ जाएं और हमारे एयरफोर्स के कॉन्वॉय के ऊपर आप फायरिंग करनी शुरू कर दें और 5 हमारे बच्चे जो हैं उनको Hurt grievously. मतलब उनको गोली लग गई हो। मतलब ये क्या है? तो आपके जितने भी क्लेम थे अभी तक सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के, वो कहाँ गए? Let's be very clear. Where is the intelligence? They should, rightfully speaking, they should have seen it. They should have seen it coming. चुनाव का भाई चुनाव का मौसम है। मेरा ये कहना है कि चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में ऐसा होना ही था, मालूम होना चाहिए। सो वेयर वाज आवर इंटेलिजेंस नेटवर्क? तो लोग जो पूछ रहे हैं कि जब पुलवामा का अटैक हुआ उसकी जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट थी वो कहाँ है? मैं मानता हूं आप देश के साथ पूरी की पूरी आप शेयर नहीं कर सकते, आई एग्री विद यू, लेकिन जहां तक के पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उनके साथ तो शेयर कर सकते हैं ना, बता तो सकते हैं ना कि ये फला फला एक्शन हम लोगों ने लिया हमारे इस फला फला बंदे के खिलाफ। इन एनी इवेंट आई होप दिस डज नॉट एस्केलेट into something that is uncontrollable and I hope these 5 boys recover. अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक injuries are not life threatening, ऐसा कहा गया है। I am not sure. Let's see, because the Udhampur hospital is very well equipped. It is the base hospital and I think they have the best surgeons and the best people working over there. So I hope everything goes fine. Right, to come back to politics, we'll keep you updated on this. Let's come back to politics. At the moment, from the Samajwadi Party, I think we have Advocate Pankaj Jadhav Sahab. BSP or? That is from the Bahujan Samaj Party. BSP. Bahujan Samaj Party. Bahujan Samaj Party. Advocate Pankaj Jadhav. Do we have him with us, please? Pankaj Jadhav Sahab, namaskar. Yes, नमस्कार 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 सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। तो सर बहुजन समाज पार्टी के पर्सपेक्टिव से, अगर बहुजन समाज पार्टी के चश्मे से देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है, ये बताएं सर। देखिए अभी फिलहाल तो ये चुनाव पूरे देश में अगर चल रहा है तो एक तरफा होने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब की बार हमें ये पूरा विश्वास है कि ना कांग्रेस ना बीजेपी इस बार बहुजन समाज पार्टी का हाथी संसद में जाएगा जरूर और नीला झंडा फहराएगा कंफर्म। लेकिन आप तो पहले भी मतलब आपने उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीती थी भाई पिछली बार, अगर आप देखा जाए तो 2019 में मोदी जी की लहर थी पुलवामा के बाद, मतलब इतना ज़बरदस्त ऑलमोस्ट वन साइडेड हो गया था, लेकिन फिर भी बहन जी 10 सीटें लेकर के आई थी। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार क्या होगा सर, कितनी सीटें आएंगी आपकी? देखो पिछले बार मोदी जी की लहर ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने वो आर्टिफिशियल लहर बनाई थी और उसमें जो चीज हुई आपके सामने, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, बहुजन समाज पार्टी का जो बेस है वो 10 के मस्त नहीं हिल पाया। और उस वक्त भी एसपी बीएसपी का जब अलायंस हुआ था उसमें बीएसपी के वोट आए लेकिन एसपी के वोट कन्वर्ट नहीं हुए थे, फिर भी हमारी 10 सीटें वहां पर आई थी। लेकिन अब की बार जो है, अब की बार यूपी में आप अगर देखेंगे तो यूपी में बीएसपी किस लेवल पे काम कर रही है, यहाँ पर डायरेक्ट बीजेपी का सामना बीएसपी के साथ हो रहा है। और हमें भी पूरा विश्वास है कि इस बार अगर यूपी में से 50 से 60 सीट अगर हमारी आती है तो बहन जी के अलावा प्राइम मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट नहीं होगा और बीएसपी के अलावा कोई भी यहाँ पर सरकार नहीं बना पाएगा, ये कंफर्म। और दूसरी चीज क्या है कि विदर्भ में भी आपने 10 कैंडिडेट खड़े किए हैं, 10 सीटें विदर्भ में, महाराष्ट्र में, और 10 के 10 कैंडिडेट आपके हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद लेके बैठी है कि आपकी वजह से जो दलित वोट है वो पूरा बहन जी की तरफ चले जाएगा तो कांग्रेस को नहीं मिलेगा,
तो कांग्रेस का वोट कटेगा। उनको ऐसा लगता है, वो वैसे सोच सकते हैं, लेकिन हमारा देखो, हमारा ना बीजेपी ना कांग्रेस, हम राष्ट्रीय पार्टी है। हम एक मिशन को चला रहे, बाबा साहब अम्बेडकर का, फुले साहब अम्बेडकर का मिशन चला रहे, और हमारा ये मिशन पूरे लोगों में, आज जितने बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी 85% लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज उतना लोगों में सारा अवेयरनेस है, तो लोग, विदर्भ के लोग भी बहुत भली भांति समझदार है, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे और वहीं से भी हमारी सीटें आएंगी। तो इसमें कांग्रेस या बीजेपी का हम कुछ बात नहीं कर सकते। और रही बात बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा, उससे हमें कुछ लेन देन नहीं, ना कांग्रेस का नुकसान होगा, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं। हम अपना बेस किस तरह से बढ़ा पाएंगे, हमारे वोट कैसे बढ़ते, हम सीट कैसे निकालते, हम इसलिए लड़ते हैं, क्योंकि बाबा साहब का मिशन। बहुजन समाज पार्टी की प्रेजेंस जो है वो महाराष्ट्र में काफी है, आपकी प्रेजेंस मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में तो है ही। तो इन 3 या 4 स्टेट्स में भी अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है तो आपकी वजह से बहुत तकलीफ हो सकती है लोगों को, जहां तक मेरा ख्याल है। हाँ, हमारे अगर परफॉर्मेंस बढ़ती है तो इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों को होती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता है। क्योंकि जिस दिन भारत में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आ जाएगी और बहन मायावती जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो इनके सबकी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी चीजों के ऊपर उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, बहन जी मुख्यमंत्री के रहते वक्त पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने, उनको आयर लेडी इसीलिए बोला गया क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ही उनका मेरिट है। तो यहाँ पर ये बताएं सर, जैसे प्रकाश अंबेडकर जी हैं, वो ग्रैंडसन है बाबा साहब अंबेडकर के, उनका और आपका मेल तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि आखिरकार वो कहते हैं कि मैं भी बहुजन वंचित अघाड़ी के लिए काम कर रहा हूँ, तो और आप भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, तो वो मेल क्यों नहीं हो पा रहा सर? अभी ऐसा है, देखिए कि वो उनका उनकी सोच है, उनका अपने तरीके से उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी अभी 2019 में उन्होंने उसका स्थापना किया हुआ है और उनको चला रहे उस तरह से। लेकिन हमारा राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में हमारी पार्टी काम कर रही है, तो उनके बारे में मैं कोई उसके बारे में कमेंट्स नहीं देना चाहूंगा। मैं सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष आपके सामने रख सकूं। जादव जी, वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, बिकॉज कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे तो प्रोग्राम में थे, प्रोग्राम में, तब उनका कहना है कि एंटायर उत्तर प्रदेश के इलेक्टोरेट को मालूम है कि अ वोट टू मायावती इज अ वोट फॉर बीजेपी, एंड पूरे इलेक्टोरेट समझा हुआ है कि दे विल नॉट वोट। ना हाउ डू ये जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पीपल, द इलेक्टोरेट ऑफ यूपी कन्विंस हो चुका है कि मायावती जी को सपोर्ट किया या वोट दे दिया तो इनडायरेक्टली बीजेपी को वोट देना है। इज इट ट्रू जादव जी? नहीं, पूरी तरह से ये झूठ है। ये नैरेटिव लोगों में इस तरह से फैलाया जा रहा है कि बीएसपी का वोट मतलब बीजेपी को वोट। एक नैरेटिव है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, उसको स्प्रेड किया जाता है, लोगों में इस तरह से मेंटेलिटी दी जाती है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में है। लेकिन बीएसपी को जानने वाले, बीएसपी के केडर को जानने वाले, जितने बीएसपी को मानने वाले लोग हैं, उनको हमारे ऊपर ये कोई नैरेटिव का असर नहीं होता। ये झूठ प्रचार है, इसमें कोई दम नहीं। एक बात है, बीएसपी को वोट देना मतलब सीधा सीधा फुले साहब अम्बेडकर के विचारों को वोट देना। बीएसपी को वोट देना मतलब नए भारत की नींव रखना। बीएसपी को वोट देना मतलब समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, इसके लिए वोट देना। और ये अगर भारत के लोग सब समझ जाए, उस दिन वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पर जो अभी चल रहा है, असंतुष्टता जो चल रही है, असहिष्णुता चल रही है, वो सब बंद हो जाए। तो मैं नहीं मानता कि ये बीएसपी का वोट मतलब बीजेपी को, ये एक नैरेटिव है और झूठा नैरेटिव। जादव जी, मगर जादव जी, वी वांट टू अंडरस्टैंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहा है कि जितने ओबीसी समाज, जितने दलित समाज, उनको जितने योजनाओं से जोड़ा है मोदी जी ने, अराउंड 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, जन मन योजना के माध्यम से जितने ट्राइबल्स है, आदिवासी फंडिंग करके उनको मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए जो मोदी जी ने अलग अलग स्कीम्स है, बोले ओबीसी, विश्वकर्मा समाज, उनको जोड़ने के लिए 13,000 करोड़ का बजट जो मोदी जी ने सैंक्शन कर दिया है। तो मोदी जी का कहना फार्मर्स, किसान के लिए किसान सम्मान, तो इस ऐसे स्कीम्स में जो लाभार्थियां डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर करें 35,000 करोड़ के ऊपर, तो हाउ डू यू सी इट? कैसे आप कॉम्बैट कर सकते हो? मोदी जी ऑल्सो हैज रीच्ड आउट टू पीपल। जादव जी,
मोदी जी ने अगर ये बताया है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है, तो उन्होंने आंकड़े तो बताए, लेकिन किस किस को दिया वो सब नहीं बताया, तो सिर्फ भाषणों में अपनी ये सब बता दे। तो मैं ये मानता हूँ, हमारी पार्टी भी ये मानती है, और बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भाषण में भी इसके बारे में डिटेल बताया कि 80 करोड़ लोगों को आपने राशन, मुफ्त में राशन दे रहे हो, मतलब 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ जनता को आपने मजबूर कर रखा है, मुफ्त के राशन के लिए भिखारी बना के रखा है। इसका मतलब ये डायरेक्ट होता है कि उनको कोई रोजगार नहीं है, उनको कोई एजुकेशन नहीं है, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट या कोई चीज मिल नहीं रही, मुफ्त के राशन में जीने के लिए मजबूर है जनता। दूसरा कि जितना उन्होंने आज तक 13,000 करोड़ बोल रहे कि अगर विश्वकर्मा योजना के लिए दिया है और इतने लोगों को, तो उसका एक डेटा एक बार सार्वजनिक किया जाए तो इसमें सच क्या है वो समझ में आ जाएगा। और रही बात इतनी योजनाएं चला रहे, ये सारी की सारी योजनाएं बहन कुमारी मायावती जी ने उनके मुख्यमंत्री रहते, ये छोटी बच्चियों के लिए हो या फिर देश के, मतलब स्टेट के हर एक नागरिक के लिए कितना बेनिफिट, ऐसी दुनिया भर की योजनाएं थी, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर रहे, और वही नाम बदलकर इन्होंने देश में वो चलाने की कोशिश की है। यादव मुद्दे की साहब बात यह है जी, यादव साहब, आप बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, अपने बलबूते पर बनी और सबसे पहली मुख्यमंत्री थी कई सालों में जिन्होंने अपनी पूरी टर्म कंप्लीट करी, पूरे 5 साल उन्होंने कंप्लीट किए। मैं आपसे जानना चाहता हूं उस वक्त क्या था कि वो ब्राह्मण समाज हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, सब आपके साथ आ गए। क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? प्रशांत यादव साहब, इस बार ऐसा होने वाला, ये सोचने से अच्छा मैं बताऊं, इस बार ऐसा हो चुका है। आप अगर यूपी में देखिए कितने सीट्स बहन जी ने, मुस्लिम समाज के हो, ओबीसी के हो या फिर ब्राह्मण समाज के हो, हर एक को यहाँ पर बीएसपी का टिकट दिया गया है, और लोगों का ये अभी तक कन्फर्म विश्वास हो चुका है कि अब की बार ना बहन जी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन उनके सामने नहीं है। इसलिए सर्व समाज के लोग, सोशल इंजीनियरिंग जो बहन जी ने 2007 में दिखाया था, आज वही दोबारा वापस होने जा रहा है। सर्व समाज के लोग, सभी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, और सभी ने बीएसपी को अपनाया हुआ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो, जादव जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो हैज एवरीथिंग फॉर ऑल सेगमेंट्स। महालक्ष्मी योजना, 1 लाख रुपया महिला को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, अब पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक्स पे पाबंदी, तो एक से एक स्कीम। और जो राहुल गांधी जी ने 83% SC ST OBC, पिछड़े, दलित समाज, माइनॉरिटीज को मिला के 83%, और जातीय जनगणना, बार बार इसको एहसास दिलाते कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तो क्या इसका कॉम्पीट कर पाएंगे आप? बिकॉज राहुल गांधी जी ने पूरे 83% उनके कैलकुलेशन करके मैनिफेस्टो को एक छाप भी दिया है। हाउ यू गोइंग टू कॉम्बैट दैट, जादव जी? हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ही कभी भी कोई मैनिफेस्टो में देती नहीं है, डिक्लेयर नहीं करती, या उस पर कोई ज्यादा फोकस करने की कोशिश करती है, क्योंकि पार्टी का पहले से ये रहा, हम जब सत्ता में आते तो हम ऐसे ऐसे काम करके दिखाते जो समाज के हित में हो। अब ये मैनिफेस्टो लाना, मोदी जी भी लेके आए थे मैनिफेस्टो, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, आय दुगनी होगी, किसान होगी, हुआ क्या ऐसा? तो मैनिफेस्टो ये एक जुमला है, हम उस पर कोई भरोसा नहीं करते। हम जो काम करते हैं वो ऐसे काम होते, माइलस्टोन होते, और समाज के हित को नजर में रख के ही सारे काम किए जाते। आपने अगर देखा होगा 2007 से लेकर 2012 में बहन जी ने जो काम किए, आज तक कोई सरकारें इतनी बनी, कोई भी वैसे काम नहीं हुए। आज आप देखो भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, बहन जी के रहते उन्होंने जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे, ऑफिसर थे, उनको सस्पेंड करवाया। आज आप देखिए इतने भ्रष्ट ऑफिसर, जितने भी नेता लोग हैं, उनको लेके वॉशिंग मशीन में डाला जा रहा है, उनको, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के हजारों करोड़ के आरोप है, उनको बीजेपी में लिया जा रहा है, उनको टिकट दिया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन बहन जी जब वहां पर मुख्यमंत्री थी, उनकी सत्ता थी, उन्होंने अपने ही मंत्रिमंडल में जो भी करप्ट नेता थे उनको उठा के सीधा जेल में डाला। इसका मतलब सीधा साफ है कि हम साफ सुथरी राजनीति जानते हैं, और कोई मैनिफेस्टो करने से बेहतर हम वो काम करके दिखाते। इतनी सारी योजनाएं हमने जो चलाई, अगर उसकी मैं गिनने जाऊंगा तो वक्त कम गिर जाएगा। इतनी सारी योजनाएं बहन जी ने इम्प्लीमेंट की, इतनी नौकरियां, युवाओं को इतनी नौकरियां दी, जो भी गवर्नमेंट का कोटा था, जो भी बैकलॉग था, पूरा के पूरा बैकलॉग भरा गया। आज बहन जी के वक्त देखेंगे आप तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू नहीं हुआ। मैं याद दिलाऊंगा राम मंदिर का इश्यू, जब हाईकोर्ट में, वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वहां पर जब जजमेंट हुई, वहां पर जब ऑर्डर हुआ,
उस वक्त पूरे यूपी में बेन जी की सरकार थी, हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया हुआ था, जरा भी कहीं पर ऐसी कोई भी घटना, दंगा और ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी थी। तो हम जो काम करते हैं, हम बोल के नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। हम चुनावी जुमले कभी किसी को देते नहीं, लेकिन हम जो काम करते हैं वो सालों साल उसका रिजल्ट लोगों को दिखने मिलता है। तो सर यादव साहब, ठीक है, विदर्भ में तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब मराठवाड़ा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, खानदेश, उसके अलावा मुंबई, कोंकण, इसका क्या हाल है सर? कुछ उसके बारे में बताएंगे क्या? अभी आज की मुंबई की बात है, एक मुंबई प्रदेश का प्रेसिडेंट होने के नाते बताऊंगा, मुंबई की 6 सीटों पे हमने कद्दावर नेता खड़े किए यहाँ पर, और हमने समाज के लिए आज यहाँ पर मुंबई में हमने 3 मुस्लिम कैंडिडेट और 3 बुद्धिस्ट कैंडिडेट दिए। यहाँ के लोगों को, बहुजन समाज का यहाँ का गणित है हमारा, मुस्लिम दलित एक हो जाए और ओबीसी एक हो जाए तो यहाँ पर मुंबई की 6 सीटों में से कम 3 से 4 सीट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इतनी जोरदार तैयारी से हमने यहाँ पर हमारे कद्दावर नेता को, उम्मीदवारों को उतारा है। उसी तरह से जैसा विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, यहाँ पर भी हमने अच्छे से अच्छे लीडर्स, अच्छे से अच्छे उम्मीदवार यहाँ पर हमने चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो वो 100% रिजल्ट महाराष्ट्र में से इस बार बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। तो इन टोटल कितने होंगे सर महाराष्ट्र में? कितने कैंडिडेट हैं सर आपके इस बार महाराष्ट्र में? पूरे 48 के 48 हमने यहाँ पर कैंडिडेट किए, सिर्फ सिवाय रायगढ़ में हमारा कैंडिडेट था, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वहां पर कैंडिडेट को हमारे बात किया गया, लेकिन रायगढ़ छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में 48 में से 47 जगह पे हमने अपने कैंडिडेट उतारे। 47 प्लेसेस, वाह, जबरदस्त। यू नो हाउ आर यू जादव जी, आप कैसे, योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से सिक्योरिटी पूरे उत्तर प्रदेश में इनगल्फ किया है, ये कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया है सिक्योरिटी, दूसरा राम मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि है और काशी विश्वनाथ टेम्पल है, ये रिलीजियस सेंटिमेंट उन्होंने फुलफिल कर दिया, ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दिया। पूरे डेवलपमेंट जो है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश पहले एक कट्टा और रामपुरी के लिए फेमस था, आज वहां से ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये इतना सारा बदलाव को कैसे मायावती जी कोई नकार नहीं पाएंगे कि डेवलपमेंट हुआ, मंदिर का काम हुआ, सुरक्षा प्रदान किए लोगों को, उसको कैसे चैलेंज करोगे आप जादव जी? इसको चैलेंज करने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि हमारी सरकार रहती है, बीएसपी की सरकार रहती है, वहां पर के लॉ एंड ऑर्डर क्या था, वहां पर डेवलपमेंट क्या थी। आज उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी सिर्फ राम मंदिर की वजह से नहीं है। राम मंदिर बनने के पहले वहां पर बाबा साहब आम्बेडकर पार्क यहाँ पर इतना बनाया गया, यूपी में इतने चेंजेस कर दिए। लखनऊ में आप अगर जाएंगे, आज भी जाएंगे तो आपको पता है कि लखनऊ में बेन जी ने क्या क्या बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश में बेन जी ने इतने पावरफुल सड़कें, रास्ते इतने बनाए, जहाँ पर फाइटर जेट उतारे जाते हैं, ऐसे वहां पर सड़कें बनाई। तो ये डेवलपमेंट जो है, बेसिक जो डेवलपमेंट से बेन जी ने किया, वहां पर स्कूल, कॉलेज, देखो मंदिरें बनी, यहाँ पर कुछ विजिट करने के लिए जो चीजें बनी, उससे डेवलपमेंट नहीं होता। अगर डेवलपमेंट होना है तो वहां पर स्कूल बनने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, कॉलेजेस बनने चाहिए। डेवलपमेंट हो तो एम्प्लॉयमेंट वहां पर क्रिएट करने चाहिए, 2-4 कंपनी वहां पर बनाई, वहां पर डेवलपमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। बेसिक है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये अगर वहां पर अगर फुल पिक है तो आप बताइए कितने कॉलेजेस यूपी में बनाए गए, कितने एम्स, कितने हॉस्पिटल्स कितने बनाए गए, कितनी सड़कें बनाई गई है। गिने चुने अगर कुछ देखेंगे तो वही छोड़ के वहां पर यूपी में कुछ डेवलपमेंट नहीं है। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो एक विशिष्ट समुदाय को टारगेट करके उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है, और अगर उसको आप लॉ एंड ऑर्डर कहेंगे तो मैं इसको नहीं मानता। समाज का गरीब से गरीब जो मजलूम इंसान है, उसको वो जिस दिन उसको कानून का प्रोटेक्शन मिलेगा, उसको लॉ एंड ऑर्डर करते। लेकिन आप प्रशांत यादव जी, आप एडवोकेट भी हैं, यू आर एन एडवोकेट। यस सर, यस यस। Apart from being from the बहुजन समाज पार्टी, you are also an officer of the court. Yeah. अब आपसे मैं चाहूँगा कि आप ज़रा कमेंट करें कि जिस तरीके से एक नई नीति, एक नई रणनीति अपनाई गई है कि ज़रा भी किसी के खिलाफ कुछ होता है, कोई जुर्म भी दायर होता है, दर्ज होता है, गुनाह कोई दर्ज होता है, उसके घर के सामने बुलडोज़र पहुँच जाता है। सर, ये कौन से कानून में है? आपको मालूम है कि आप ज़रा समझाएं इसको मुझे। देखिए, बहुत सही सवाल आपने पूछा है, और बहुत मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि ये इसी सवाल के माध्यम से मैं आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि यही चीज है कि सरकारें जो होती है वो अपने पावर का कैसा मिसयूज करती है, इसका ये जीता जागता नमूना, ये जीता जागता उदाहरण है। इस सरकार को कोई अधिकार नहीं कि किसका घर पे बुलडोजर घुमाया जाए।
आप सरकार है, आपने अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज की तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के हिसाब से, वो सीआरपीसी के हिसाब से प्रोसीजर करो, उसको जो भी सजा देने हैं, आप जितने भी आपके पास सबूत है कोर्ट के सामने लेके जाइए, कोर्ट उसको जो भी डिसाइड करेगी उसको बाइज्जत बरी करना है या उसको गिल्टी करके उसको सजा देना है, ये कोर्ट का अधिकार है। लेकिन अभी आपकी यहाँ पर जो यूपी में हो रहा है, ये जिस तरह से बुलडोजर लोगों के घरों पे घुमाए जाते हैं, ये कोर्ट का काम आजकल सरकार ने अपने हाथ में लिया है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी इनके ऊपर इनको सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको बहुत सारी टिप्पणियां की है, क्योंकि किसी का घर बुलडोजर घुमाना है तो इसके लिए कोई प्रोसीजर है, कोई कानून है, सिविल प्रोसीजर कोड है। अगर वो डिमोलिश करना है तो पहले वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको पहले इलीगल साबित करो, फिर एक प्रोसेस के हिसाब से उसको डिमोलिश करो। ये बहुत लंबी प्रोसीजर होती है और उसमें जिसका इलीगल स्ट्रक्चर है या लीगल है या इलीगल है, उसको भी एक मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का कोर्ट में। तो अगर दोनों तरफा ये बोलते हैं नेचुरल जस्टिस का पार्ट है ये। और अगर नेचुरल जस्टिस को आप मानते हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने नेचुरल जस्टिस के तहत दोनों भी साइड सुनने के बाद में फैसला करने का ये कोर्ट को अधिकार दिया गया है। लेकिन अभी क्या गया है कि इन्होंने ओवरराइड किया है, इन्होंने कोर्ट के जो पावर्स को ओवरराइड करके खुद ये डिसाइड करके किसका घर तोड़ना है, और नाम और जात और धर्म पूछ के अगर बुलडोजर घुमाए जा रहे हैं, मतलब ये सीधा संविधान का हनन है। संविधान ने दिया हुआ जो अधिकार है और नेचुरल जस्टिस है, उनको सीधी तरह से लताड़ा जा रहा है और ये एक तरफा एकाधिकारशाही चलाई जा रही है। इसीलिए संविधान ने ये जो हमें अधिकार दिए, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जाने का और आर्टिकल 226 ये वहां के हाई कोर्ट में जाके, इस तरह से सरकार अगर आपके विरोधात कुछ काम कर रही है, सरकार आपके अगर फंडामेंटल राइट का हनन कर रही है, तो फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट कर रही है, तो आप उसके खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके जस्टिस मांग सकते। वो सिर्फ इसीलिए प्रावधान किया गया कि अगर सरकार अपनी मिसयूज करे। प्रशांत यादव जी, सॉरी, इसी पर एक और सवाल पूछ रहा हूं आपसे, माफ कीजिएगा। अगर इस किस्म की चीज हो रही है, और हो रही है सबके सामने, आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है, और उसके लिए हो रही है क्या, उसके लिए तो क्रेडिट क्लेम किया जाता है साहब कि देखो हमने बुलडोजर घुमाया, गैंगस्टर का घर तोड़ा, हमने ये किया, हमने वो किया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो कानून की किताब जो अभी आपने मेंशन करी, सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो सबको बंद करके हम लोग अलमारी में बंद कर देते हैं, फिर क्या है उसमें, क्या मतलब हुआ उसका, ये बताएं। हाँ, तो यही चीज है, पूरे देश को ये चीज अभी समझ में आ चुकी है कि इस तरह से कुछ अपने लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि इनका एक प्रोपेगेंडा है कि अपने लोगों को खुश करने के लिए इन्होंने सीधे हिंदू मुसलमान ये सीधा ये कर दिया इलेक्शन के वक्त, या अपने चुनावी मुद्दा, अपना एजेंडा लेके जाने के वजह, मतलब वो आगे लेके जाने के हेतु से ये सारी चीजें करते हैं लोग। कुछ अपने लोगों को खुश करने के लिए एक विशिष्ट समुदाय को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, और उसके ऊपर एक तरफा एक्शन, मतलब आपके पास पावर है तो उसका मिसयूज करो, और ये अपने लोगों को खुश करने के लिए सारी चीजें की जाती है कि अपना चुनावी उल्लू सीधा की जाए, उसका बेनिफिट उठाया जाए। तो जादव साहब, इसमें तो कोर्ट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, आपको लगता नहीं है? अभी तक वो स्ट्रिक्ट एक्शन मैंने देखा नहीं, क्योंकि आपने देखा हुआ है, पूरे देश ने देखा हुआ है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो चुका है कि इतिहास में अभी कैसा, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। इसके पहले भी इमरजेंसी होती, इमरजेंसी में भी सुप्रीम कोर्ट ने और जुडिशियरी ने जुडिशियल एक्टिविज्म के एग्जाम्पल सेट किए, जुडिशियल एक्टिविज्म के एग्जाम्पल दुनिया को दिखाए, इंडिया में ये सब दिखा दिए। अभी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस वहां पर नीचे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल रहे हैं कि यहाँ की डेमोक्रेसी खतरे में, तो इसका मतलब ये सीधा साफ हो गया, उसी वक्त साफ हो गया कि जुडिशियरी भी खतरे में, जजेस जो है भी, उनको भी यहाँ पर प्रेशराइज करके उनको भी इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, उनको भी डराया धमका जा रहा है, उनको भी डिसीजंस इसे लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये तो सारा अभी हमने देखा ही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी ये चाहता हूँ कि दुनिया भी, महाराष्ट्र में भी ये मुंबई ने, पूरे देश में इसका एक मैसेज जाना चाहिए। जुडिशियरी ने इस तरह से होने वाले जो हादसे या इस तरह से जो भी एक्टिविटीज, उसको स्टॉप करना चाहिए, अपने पावर्स यूज करने चाहिए। नहीं तो जुडिशियरी में अगर थक गई है, इनके सामने घुटने टेक दिए जुडिशियरी ने, तो आम आदमी, एक मजबूर इंसान जो कम से कम गरीब से गरीब तबका लोगों का विश्वास जुडिशियरी पे से उठ जाएगा। आज कहीं थोड़ा बहुत जो विश्वास है, जो जुडिशियरी ने अपना काम
बिना डर के यहाँ पर करना जरूरी है। आर्टिकल 370 जादव जी, बहुत सारे पार्टीज के मैनिफेस्टो में है कि आर्टिकल 370 हम वापस लेके आएंगे, सीए को हम कैंसिल कर देंगे, ट्रिपल तलाक को वापस लेके आएंगे। तो हाउ डू यू सी, इज बीजेपी का कहना है कि ये नेशनल इशू है, नेशनल सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सब कानून हमने जो भी करना था कर लिया। बट इफ यू आर हैविंग सम पॉलिटिकल पार्टीज हैविंग दिस इन द एजेंडा कि आर्टिकल 370 वापस लेके आएंगे, हाउ डू यू सी दैट? इज इट नेशनल इंटरेस्ट और एंटी नेशनल? आर्टिकल 370 हो या जितने भी बिल बीजेपी ने पास किए, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में जिनके पास बहुमत होता है वो अपने हिसाब से बिल मंजूर कर लेते, बिल पास कर लेते। बीजेपी ने भी उसी तरह से मैंने बोला ना कि इसके पहले कि अपने लोगों को खुश करने के लिए या अपने जो भी सपोर्टर्स है उनको खुश करने के लिए जिस तरह से किए काम, अभी उसमें टिप्पणी करना सही नहीं होगा। क्योंकि एक चीज है, आपको बताओ, मैनिफेस्टो में ये अलग अलग ऐसे चुनावी जुमले देते और उसी तरह से जो भी चीजें अभी बिल के माध्यम से इन्होंने लाई है, आपको पता होगा इन्होंने ये भी बिल लाया अभी इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट करने का। अगर आप इम्पार्शियली करना चाहते तो उसमें एक अपोजिशन का लीडर, एक प्राइम मिनिस्टर और एक जुडिशियरी में से चीफ जस्टिस, ये बहुत सही था। लेकिन उसको भी इन्होंने पावर का मिसयूज करके पार्लियामेंट में बिल किया ना पारित, और उसी बिल के तहत उन्होंने अपने ही पार्टी के 2 लोगों को और एक अपोजिशन को लेके, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पावर का, अपने बहुमत का किस तरह से यूज कर रही है, उसमें अच्छा कि बुरा ये समझने के लिए जनता बहुत समझदार है। और रही बात ये बिल जितने भी लाए उसका बेनिफिट अभी बीजेपी ले रहे, तो उसमें लोग अभी समझदार है कि क्या देश के लिए सही क्या गलत है। और हमारे पार्टी ने 370 और ये सारी चीजों के ऊपर बेन कुमारी मायावती ने अपना एक पक्ष रखा है, तो उसके ऊपर आगे जाके कोई स्टेटमेंट देना मेरे लिए बेहतर नहीं, मतलब मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता उस पर। राइट, थैंक यू सो मच सर, जादव साहब। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड वेलकमिंग यू ऑन द शो। पहली बार आप हमारे शो में आए, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड वी विल वॉच यू वेरी वेरी केयरफुली। यू आर अ यंग मैन, थैंक यू सर, थैंक यू, dynamic young man. I hope you go far. We need people like you. Thank you so much, sir. Thank you, thank बहुत you. बहुत धन्यवाद आपका. Thank you. थैंक यू सर, जय भीम। Right. So in terms of the attack at Poonch, which is at Surankot, by the way, Surankot, it was a technical team of the Indian Air Force which was going, and so far the casualties have been limited to 5. 3 very serious, and those 3 have been flown to the Udhampur base hospital and they are being treated. We'll know more in a couple of hours. And the entire area has been cordoned off by the Rashtriya Rifles, and they say there is no possibility that these chaps will escape. I think a strong message needs to be sent across the बिल्कुल border. सर। A very, very strong message needs to be sent across the border that we shall not tolerate this, and all parties together, irrespective of whichever calling you have, should come together and present a united front on this. And I hope to God you don't do politics on this attack. खैर, दुनिया उम्मीद पर कायम है। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इसके ऊपर राजनीति नहीं करेंगे। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट इन टुनाइट शो। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। And by the way, we are also available on Instagram, on Facebook, on X, which is formerly Twitter. Hopefully by Monday we'll have the proper symbol for you right over there. I hope so. और अपने comments ज़रूर भेजते रहें. We love reading your comments. I've not been able to read them out over here because of lack of time. Well, that's just about it in tonight's show. आज की शो में सिर्फ इतना ही. आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।